So now find same program is there on YouTube also. I request all students please inform your friends, those who wants to join this program. Okay, sir, you can continue now, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Tilke, sir, Natharman, Gavande, sir, Professor More, sir, to giving me this opportunity to interact with the students on the topic that is self-incompatibility in flowering plants. I think besides all this formality, we should have to go directly on our concepts, which will be given to me. Okay. And I think everyone is joined. How much maximum strength of students will attending this class every day? Right now, 46 students joined, but Yes, sir. later on they continuously joined, and this near about 100 students joined on this particular Okay, platform. okay, sir. Okay, sir. I think somebody may join on YouTube live also. Yeah. Okay. Yes, sir. May I share my screen right now? Yes. Yes, sir. I think I'm not co-host right now. Okay. Just a minute. Okay. Now you can share, sir. Oh, okay, sir. Yes. My screen is visible. Yeah. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Okay. My great tribute to Sant Garge Baba, Dr. Punjab Rao Deshmukh, and the Sri Shivaji Education Society, Amravati. Also, I also thanks to principal of our college who allowed me to uh, give this lecture. So, first of all, I'm also thanks to university faculty members who give me this opportunity to interact with students. Today, we are going to discuss the concepts which having a importance in NET set as well as various competitive exams in life sciences. Here, I want to discuss something about the what is the NET. We are focusing the NET exam. There are many exams, but it is my view if you are focusing on the CSIR NET, then everyone can be completing his study of all other exams in India. Okay, that's why most of things we are talking in related with the NET, CSIR NET. Okay, here the concepts, this is a self incompatibility in flowering plants. This concept is the part of unit in NetSet syllabus, that is the developmental biology. In developmental biology in NET exam, they have given the syllabus in which the animal development was the 70% part of the syllabus of CSIR NET, but remaining 30% part of the developmental biology, they may ask the questions from the plant development. And this is the very important topic in that.
that is the self incompatibility in flowering plants. I think everyone is comfortable in English, Hindi, or Yeah, yeah. 100% students and comfortable in Marathi. I know Yeah, my mother tongue is Marathi, no problem. no problem, sir. No problem, sir. Okay. If and this all the brief is introduction of mine given by the student representative here. Let's move to actual concept. What I want to say. I think you are clear with the NET exam structure. There are two parts in that. First part is we call the A part, and second one is the B part. Also, you are having a third part. I am talking about the subject only. I'm not talking about the first part, that is the aptitude, because this lecture is not the part of that first part. Okay, ABC. If you are discussing about the ABC, A is the aptitude part, B is the 2 mark question. In that, you will have a choice 50 questions or 50 questions, and out of that, you have to solve maximum 35 if you want to out of marks. And in C part, you have a lot of choice, that is 75 questions. And out of that, to make it 100%, you have to solve only 25%. It means 1/3 of questions of the C part you should have to be uh, solved. Okay. So what is the marks distribution? In A part, each question carries 2 marks. In B part, each question carries 2 marks, but total weightage of A part and B part is 100 marks, and the C parts are only having a weightage 100 marks. Okay, तो ये सारी चीजें जो है नेट का स्ट्रक्चर जो था वो ऐसा है, जिसके पेपर 3 पार्ट आएंगे एक पेपर के, ए बी सी, ए एप्टीट्यूड, बी 2 मार्क्स का जो हर एक क्वेश्चन रहेगा. Finally, it will having a weightage for 70 marks, A part having a 30 marks, and C part alone having the 100 marks. And C part's questions are the research level questions or the detailed questions. But in B part, you will get the questions from life sciences, and that are very easy to solve. Okay, I think this structure is clear to everyone. Let's move to the topic. Here, we are discussing about the self-incompatibility. But before understanding all these, we need to understand the meaning of word, that is what is meant by compatibility. The word incompatibility is came here, and this word compatibility means what? In Marathi, we can say compatible means the susangat. Susangat, it means the perfectly match or the thing which is right at that place. Okay. तो compatibility का मीनिंग होता है कि सही जगह पर वो होना चाहिए. इनकॉम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है विसंगति. विसंगति इन मराठी और हिंदी. व्हाट इज मीन बाय विसंगत? विसंगत हम उस चीज को तब कहते हैं, मान लो कि आप किसी एक लॉक की की को उस लॉक से अटैच कर रहे हैं. यदि वह की जो है उस लॉक की ही की होगी, तो हम कहेंगे कि वो दैट विल बी द कॉम्पेटिबल, वो उसके साथ सुसंगत है. ठीक है. और यदि वह चीज उस लॉक के साथ वह की जो है किसी दूसरे लॉक की आप लगा रहे हैं, तो आप होंगे इनकॉम्पेटिबल. यू डोंट गो थ्रू द एज इट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. What is the concept? Let's see the definition of self incompatibility. This is a mechanism of flowering plants which prevents inbreeding and promotes the outcrossing. सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी एक प्लांट्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्लांट्स अपने खुद के ही पोलन के साथ खुद की ही एग को या खुद की ही ओवरी को या एग और गैमेट के फर्टिलाइजेशन को फेवर नहीं करता है, बल्कि वह किसी आउटक्रॉसिंग यानी दूसरे प्लांट के पोलन्स को फेवर करता है. और ऐसा यह क्यों जरूरी है, हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे
कि why this is required, what is the need of this self incompatibility, how it is beneficial to the plants, और उसके बाद हम देखेंगे कि what is the mechanism through which the plants can achieving this self incompatibility things. Okay, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के थ्रू प्लांट्स अपने खुद के ही मेल स्पार्क को खुद के ही फीमेल से क्रॉस होने से बचाता है, क्योंकि इट विल नॉट गिविंग अ फिटनेस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन. ओके, सो व्हाट इज द थिंग, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी से क्या असर होता है यदि प्लांट खुद के ही मेल गैमेट्स को खुद के ही फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करेंगे, तो उससे क्या बुराई है, इसमें बुराई कौन सी है? तो इस बात को हम जानेंगे कि यदि दिस SI लेटर in my presentation, the SI means the self incompatibility. Every time I will not call the self incompatibility. For the shorts, I will use the SI. SI is not the international standard unit here. SI means the self incompatibility. Okay, so in SI, plants, SI is a system where self recognition and rejection is the rule that prevents the inbreeding depression. Yes, this is a new concept which you were studying in your 10th class. आपकी 10वीं कक्षा की साइंस की बुक में आपने ऐसा कुछ हेडिंग पढ़ा है, आपको कितना पता है ये मुझे पता नहीं है, पर inbreeding depression. Okay, inbreeding depression was the concept which is noted in the state book and NCERT books of the school 10th class. Okay, what is inbreeding depression? यदि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, मतलब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती है, तो प्लांट खुद के ही मेल गैमेट्स को एक अपने ही फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, तो उससे बनने वाली जो नेक्स्ट प्रोजेनी है, उससे बनने वाला जो एम्ब्रियो है, वह एम्ब्रियो किस चीज को लीड करता है? तो वह लीड करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को. मतलब यहां पर कहने का मतलब यह है, यदि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी उसमें होगी तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा. इसलिए प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का होना उस प्लांट्स के लिए, उस प्लांट्स के अस्तित्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यू टू दिस सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी दैट प्लांट्स बिकमिंग द fit, genetically fit, and the genetically fit plants or genetically fit individual can easily survive in the environment. It can easily making changes according to the environment. I'm saying that there are few things which are very important to understand the concept. Self incompatibility. सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी समझने के लिए आपको पहले समझना है इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है. व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? हम यह कह रहे हैं कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी से इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आता है, पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन चीज है क्या? जस्ट फोकस ऑन इट. इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस इन गिवन पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ inbreeding or breeding of genetically closed individual. यदि genetically closed individual, यहां पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उनके बीच में उन्हीं का मेल पार्ट लिया जाए, उन्हीं का फीमेल पार्ट लिया जाए, if we are taking the gametes of male and female from the same plants which having the same genotype, which having the same genetic content, in this way we are not producing a diversity, that is we call the heterozygosity in genetics. Okay, in genetics में आपने पढ़ा होगा कि homozygous क्या होता है, heterozygous क्या होता है. आपको पता है tall and P parts on which the Mendel was completed his experiments, which we are studying during the genetics study. Sorry for interruption. Very good going, but only one problem. Yes, sir. Voice breaking is problems. I think internet connectivity is the problem from this side. My internet connectivity is, I think, okay. Now voice is clear, sir? Now voice is clear?
हा आता क्लिअर होतो, पण मध्ये मध्ये तो ब्रेक होतोय. ओके ओके, आता येतोय सर? हा येतोय. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम असू शकतो, किंवा कधी कधी काय होतं, व्हिडिओ ऑन केला आपण त्यावेळेस इंटरनेट म्हणजे असा प्रॉब्लेम येतो कधी कधी. येस सर, येस सर, येस सर. किंवा ठीक आहे, मी आतापर्यंत काही जास्त बोललेलो नाहीये. मला असा प्रॉब्लेम जर आला तर सर प्लीज कळवत जा, म्हणजे मला तुम्हाला कुठपर्यंत माझा आवाज येतोय, आय एम नॉट क्लिअर, तर मला कळवा सर. आता ओके येतोय आवाज. तेव्हा आता लेक्चरच्या मध्ये आता आवाज येतोय? हा आता क्लिअर येतोय. बाकीच्यांनी मला वाटतं व्हिडिओ आणि ऑडिओ जर ऑफ ठेवले तर बँडविड्थ थोडी चांगली मिळेल आपल्याला. हा जेव्हा कोणाला क्वेश्चन विचारायचा आहे तेव्हा तुम्ही तुम्हाला अनम्यूट करू शकता, कॅमेरा पण ऑन करू शकता, पण आता मला वाटतं की मला कोणी स्क्रीनवर दिसत नाहीये, त्यामुळे कोणीही व्हिडिओ आणि ऑडिओ सुरू ठेवून बँडविड्थ कमी होईल, त्यामुळे सगळ्यांनी ते अवॉइड करायला पाहिजे. ओके ओके सर, आता आवाज येतोय सर? मे आय कंटिन्यू? यस यस यस. यस. सो हम बात कर रहे थे, आपण काय बोलत होतो की व्हॉट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. जर एकाच प्लांटचा मेल अँड फिमेल गॅमिट्स फ्यूज होतोय तर त्याच्यामधून तयार होणारं प्लांट हे इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट करताय. ओके, इट विल बी प्रोड्यूस द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अँड इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज व्हेरी negatively affect on the fitness of the individual, which individual, that individual trying to survive in the natural environment. Okay, so to avoid the inbreeding depression, self incompatibility is required. self incompatibility में क्या होता है? तो self incompatibility में इतनी ही चीज याद रखनी है कि वह प्लांट्स अपनी खुद के ही मेल गैमेट्स को खुद के ही फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज होने से रोकेगा, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट इंडिविजुअल. ओके, बट इंडिविजुअल को सर्वाइव यदि करना है तो उसको सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी को अडॉप्ट करना होगा. इसलिए इवोल्यूशन में या डेवलपमेंटल बॉटनी में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा है. इन जेनेटिक्स आई थिंक यू हैड स्टडी द थिंग, द कंसैंग्विनस मैरिजेस इन द ह्यूमन बीइंग्स. बहुत क्लोज के जो रिश्तेदार होते हैं उनमें जो मैरिजेस है, ब्लड रिलेटिव्स के बीच में जो मैरिजेस है, इट इज अ वेरी बैड थिंग्स बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू फिटनेस ऑफ दैट इंडिविजुअल इट मे क्रिएट सम कॉम्प्लेक्सिटीज. ओके, दैट्स व्हाई वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर है कि सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी मतलब क्लोज के जो प्लांट्स है, क्लोज के जो रिलेटिव्स है, एक खुद का ही प्लांट है, सेल्फ यानी कि खुद का ही मेल एंड खुद का ही फीमेल, उसके साथ यदि क्रॉस करेगा तो उससे बनने वाला प्लांट जो है, बनने वाला एम्ब्रियो जो है, दैट एम्ब्रियो विल नॉट बी दैट मच फिट as it will be produced by the outcrossing or the crossing of from the different genotype of the okay, so due to inbreeding pressure may lower the population's ability to survive and reproduce. यदि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा तो उस पॉपुलेशन की, उस इंडिविजुअल्स की जो सरवाइव करने की एबिलिटी है या रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है वह ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी. इसलिए सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट्स द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ओके, so I think everyone have understood what is the inbreeding depression and what is the self incompatibility. Later on we will be see the concept of self incompatibility, but before understanding the concept of self incompatibility everyone should know some basics. In that you are the, most of you are the students of botany, some are not the students of botany, पर फिर भी आपको इन तीन चीजों का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तब जाकर आपको सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. यदि आपको यह तीन चीजें कुछ पता नहीं है और फिर भी आप सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके बीच में आपको रुकावट आ सकती है, क्योंकि सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी मुझे तभी पता चल सकता है जब मुझे ये तीन चीजें सही से पता है. ओके, फर्स्ट इज द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट कॉन्सेप्ट्स. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट्स की लाइफ साइकिल किस तरह की होती है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टाइप की होती है.
उसमें गैमेटोफाइट आता है, उसके बाद स्पोरोफाइट आता है, स्पोरोफाइट के बाद वापस गैमेटोफाइट आता है. इट मींस द साइक्लिक प्रोसेस इन विच द गैमेटोफाइट एंड sporophyte coming alternately. Okay, that we call the life cycle pattern is alternation of generation. Here, the double fertilization. This is the characteristic features of angiosperms. This is the characteristic features of the flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट्स किसको कहना है, उसकी एक खास बात बताई जाए तो वह खास बात क्या होती है, तो वह खास बात यही है कि वह डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं. डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्या चीज है, और नेक्स्ट इज द मल्टीपल अलील्स और मल्टीपल एलेलिज्म. यह कॉन्सेप्ट आपने जेनेटिक्स से सीखा होगा, इसको मैंने थोड़ा सा अलग कलर दिया है क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम द जेनेटिक्स. एंड multiple alleles is the part of population, not the part of individual. At a time we are the diploid organism. At a time maximum 2 different alleles we can bring with us. हम अपने साथ सिर्फ 2 अलील रख सकते हैं. मल्टीपल अलील उस जीन के हो सकते हैं पर वो एक इंसान के अंदर नहीं हो सकते, एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं हो सकते, प्लांट्स के अंदर नहीं हो सकते. इट विल बी द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. दैट इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स. ओके, मल्टीपल अलील, फ्रॉम मल्टीपल अलील मैक्सिमम 2 alleles one can carry. Why? Because we are having a limit, we having only just 2 sets of the chromosome. That's why we are say we are a diploid organism. It means we having a 2 sets. मतलब एक नंबर का क्रोमोसोम आपके पास कितनी संख्या में है, तो 2 कॉपीज में है. एक आपकी मैटरनल साइड से आया हुआ है, दूसरा पैटर्नल साइड से आया हुआ है. ऐसे ही 23 तक के सारे क्रोमोसोम अपने पास कितनी संख्या में एक सेल के अंदर, तो हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है. इसलिए हम 22 ऑटोसोम प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम इज द टोटल जेनेटिक मेकअप ऑफ 1 गैमेटिक सेल. और दोनों गैमेटिक सेल फ्यूज होती है ह्यूमन की, तो उससे बनता है डिप्लॉयड सेल. डिप्लॉयड सेल के अंदर हम कहते हैं देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम, but 50% contribution from mother side, 50% contribution from father side. This is the same concepts in plants as well. Okay, let's clear these topics first. What is the sporophyte and gametophyte in short? Okay, this is the life cycle of plant. Through this figure I want to make you know what is sporophyte, what is gametophyte, and second concept what is double fertilization. इस फिगर से हम आपको यह चीज बताना चाहते हैं कि इसमें से जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. इसके बाद में हमारा जो तीसरा टॉपिक है मल्टीपल अलीलिज्म. आई नो this is not the part of today's lecture, self incompatibility, but to understand the self incompatibility you should know 3 basics, then only you will be able to understand the concept. That's why I'm revising this topic. Okay, what is the sporophyte and what is the gametophyte? You have heard the big tree. आपने कोई बड़ा ट्री देखा है, मान लो कि आपने एक मैंगो ट्री देखा है. जो ट्री है, that intact tree is the sporophyte. That intact tree is the sporophyte. मान अभी तो आपने देखे हैं बहुत ही मतलब कुछ आम के प्लांट्स को फ्लावरिंग अभी भी दिख रहा है, कुछ को फ्रूट्स दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक जो चीज दिख रही है, दिस इज द फ्लावर. You know the complete flower having the 4 whorls, that is the sepal from the outer periphery. From outer to inner, after sepal, inside to the sepal there are corolla, or we can say petals, and inside to petals we are observing this structure. Okay, this is the androecium, and the innermost central part and central wall, this is the gynoecium. The outer 2 walls are the accessory walls and inner 2 walls are the essential walls. This is the structure which is produced by the sporophyte. एक दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि स्पोरोफाइट जो है वो हमेशा डिप्लॉयड होते हैं 2n. स्पोरोफाइट इज ऑलवेज 2n and gametophyte is n. मींस कहने का मतलब ये है स्पोरोफाइट जो रहेंगे वह हमेशा स्पोरोफाइट डिप्लॉयड रहेंगे, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड रहेंगे. स्पोरोफाइट कैसे बनते हैं, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर
बता देंगे दिस इज द स्पोरोफाइट, हाउ दिस वाज फॉर्म। तो यहां पर ये स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट के ऊपर ये जो फ्लावर आया है, दिस फ्लावर इज द सेक्स organ of flowering plants. This is the sex part, okay? And he in this portion is the sporophytic. This portion is the sporophytic. But if you are going to this is the sporophytic portion which can produce the gametophyte, Have you heard the male gametophyte of angiosperm and female gametophyte of the angiosperm? Which are the male gametophyte of angiosperm and which are the female gametophyte of angiosperm? The pollen grain. The pollen grain, or we also call the microspore, that is the male gametophyte of the angiosperm. And here the ovule. Ovule is the female gametophyte of the एंजियोस्पर्म। हियर आपको मैंने एक चीज बताई है कि इसको स्पोरोफाइट कहा है, और यहां पर आता है ओव्यूल, यहां पर आता है पोलन, यहां पर बनता है पोलन। तो फिर भी मैं इसको गैमेटोफाइट कह रहा हूं और इसको स्पोरोफाइट कह रहा हूं, बात कुछ गलत तो नहीं हो रही है? नहीं, इट इज राइट, बिकॉज द स्पोरोफाइटिक सेल्स, some sporophytic cells are having a tendency to perform the meiosis and to produce the haploid cell from diploid cell. Okay, आपको पता होगा, आपने सेल डिवीजन भी पढ़ी होगी कि meiosis is the reductional division in which the 2n mother cell, diploid mother cell, can give the haploid daughter cells, and these daughter cells here we are calling the gametes. Okay, these are the gametes. ऐसे ही यहां पर जो माइक्रोस्पोर बन गए हैं, यह माइक्रोस्पोर कोई मेल गैमेटोफाइट है। इसके अंदर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि इसके अंदर दो तरह की सेल होती है, वन इज द वेजिटेटिव सेल, अनदर वन इज द जनरेटिव सेल, और भी उसके अलग अलग नाम है, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। आई जस्ट वांट टू मेक यू क्लियर द बेसिक्स ऑफ व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेल इनकॉम्पैटिबिलिटी। क्या इसका जो डेवलपमेंट होकर इसके अंदर 3 अलग माइटोसिस होंगे, जिससे यह स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके अंदर आपको एक फाइनली यह जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको जनरेटिव सेल का एक सेल दिखेगा, दूसरा सेल जो है वह कोई वेजिटेटिव सेल दिखेगा या ट्यूब सेल दिखेगा। वेजिटेटिव एंड ट्यूब सेल इज द सेम। ओके, तो यहाँ पर जनरेटिव सेल वाला जो न्यूक्लियस है वह कोई डिवाइड करेगा, वह डिवाइड इस तरीके से करेगा कि जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तब जाकर यह कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर जब पोलन किसी स्टिग्मा पर लैंड होता है, सेटल्ड होता है, उसके बाद वह पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है। मतलब 99% में यही होता है, बट फ्यू एंजियोस्पर्म में यह जो डिवीजन है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन होना, माइटोसिस होना, वह विधि जो है वह विधि किसी पॉलिनेशन से पहले हो सकती है। 60% एंजियोस्पर्म ऐसे है जिनके अंदर यह प्रोसेस जो है वह आफ्टर लैंडिंग ऑन स्टिग्मा होगी। तो फाइनल इंटेंशन इज दैट जब यह पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पर जाएगा तो वह पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा के अंदर यह ट्यूब सेल से जर्मिनेट होगा मतलब उसकी कोई न्यू सेल नहीं बनेगी, उसी सेल को वो इलोंगेट करेगा। और आपको मैं नेट सेट के व्यू से ये थिंग इंपॉर्टेंट बताता हूं कि आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स के अंदर कोई सेल मोटाइल नहीं होती है, बट दिस इज द ओनली सेल व्हिच इज मेकिंग मूवमेंट। यह एक अकेली सेल ऐसी है जो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट करती है, गिरती है यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर और जाती है पास में अपनी ग्रोथ करके किसी सिनर्जी के पास, किसी एक के पास जो कि ओव्यूल का पार्ट है। तो आपने बॉटनी के अंदर सिर्फ यही पढ़ा है कि देयर आर स्टैटिक सेल्स, द सेल्स व्हिच आर नॉट हैविंग अ मूवमेंट, बट हियर दिस इज द ओनली सेल दैट इज द ट्यूब सेल व्हिच इज elongating in such a way that the male gametes can be reached successfully up to the female gametes, and after that the fertilization will be possible. यहाँ पर इस फ्लावर ने दो अलग अलग तरह के कोई गैमेट्स बनाए हैं। यह राइट साइड का जो अभी हमने देखा है, दिस इज द मेल गैमेटोफाइट। परफेक्टली द मेल गैमेटोफाइट इज द जर्मिनेटेड पोलन। वैसे तो माइक्रोस्पोर को या पोलन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, पर बहुत एग्जैक्ट कहना है तो आप जर्मिनेटेड पोलन को मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं और वह ज्यादा उचित होगा। पर बुक्स में कई बार ऐसा भी लिखा जाता है कि पोलन आर द मेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म, एंड दैट इज राइट, बट
more right is that the germinated pollen which carries 2 male gametes on it, that is the perfect male gametophyte of the angiosperm. This is about the male gametophyte. What about the female gametophyte? This is the cells initially which is staying here. यहाँ पर कुछ सेल्स होती है, वह भी डिप्लॉयड सेल होती है, जैसे कि यहाँ पर जो डिप्लॉयड सेल होती थी उसके अंदर कोई माइक्रोस्पोर की विधि होती है जिसको आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से पढ़ा होगा. Microsporogenesis is the process of formation of the microspore, and like that, the process which forming or which giving the megaspore and microspore. Mega means huge, micro means small. जहां पर उसकी जो साइज है बहुत ही छोटी होती है मेल गैमेट्स की, इसलिए उसको माइक्रोस्पोर कहा जाता है. और फीमेल गैमेट जो है उसकी साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है कंपैरेटिवली विद द मेल गैमेटोफाइट. दैट्स व्हाई यहां पर इसको कहा जाता है मेगास्पोर. मेगास्पोर उसकी साइज बड़ी है. मेगास्पोर तैयार होने की विधि भी वैसी है, यहां पर भी मियोसिस होना जरूरी है. मियोसिस की वजह से क्या होता है, तो डिप्लॉयड सेल से कोई डॉटर सेल बनेगी, वो सारी की सारी सेल हैप्लॉइड रहेगी. कहने का मतलब यह है कि डिप्लॉयड सेल के अंदर 2 सेट्स रहते हैं क्रोमोसोम्स के. हैप्लॉइड सेल में एक ही क्रोमोसोम का सेट रहेगा. ओके, और यहां पर जो भी बनेगा और all that things will be formed, and this is also required the meiosis. और यहां पर meiosis को आप बॉटनी में पढ़ते हैं किसी अलग चीज से, और उसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसा ही मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस and microsporogenesis both are the meiosis. And one very important thing I want to say to you, the meiosis in the plants is different than the meiosis of animals. क्या फर्क है? प्लांट्स की मियोसिस एनिमल की मियोसिस से अलग है. आपने एनिमल्स के अंदर मियोसिस पढ़ी है, जिस मियोसिस के प्रोडक्ट क्या होते हैं, उस मियोसिस के प्रोडक्ट होते हैं गैमेट्स. क्या होते हैं? गैमेट्स. पर यहाँ पर प्लांट्स में मैं मियोसिस बताने जा रहा हूं आपको, इसमें मियोसिस के प्रोडक्ट रहेंगे स्पोर्स. क्या रहेंगे? स्पोर्स. इट मींस स्पोर्स एंड गैमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स and some fungi and in some bacteria as well, but the sexual spore are produced in plants and in some fungi. That's why this is the difference in animals and plants. At the level of MSc, at the level of NET, you can't say that the what is difference between plant and animal. जो बच्चों को पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं, जिसमें बताते हैं कि कोई मूवेबल है तो उसको एनिमल कहना है, कोई स्टैटिक है तो उसको प्लांट कहना है, यह बच्चों वाली चीजें हो गई. But if you are facing the competitive exams like the NET, GATE, whatever that, you should know the basic differences in between the plants and animal. The main difference I am saying you, this is the meiosis of the animals is the gametic meiosis, and the meiosis of the plants is the sporic meiosis. What does it mean? इसका मतलब यही होता है कि गैमेट्स यदि मियोसिस से बन रहे हैं, ऐसी मियोसिस एनिमल्स के अंदर होती है. यदि मियोसिस से कोई स्पोर बन रहे हैं, ऐसी मियोसिस सिर्फ प्लांट्स और कुछ फंगस में ही होती है. इसलिए इस मियोसिस को कहा जाता है स्पोरिक मियोसिस. जिस मियोसिस का प्रोडक्ट जो है हैप्लॉइड सेल जो है वह स्पोर बनकर आगे काम करती है. तो ऐसे ही मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस पहले होगा, फिर उसके बाद में मेगा गैमेटोजेनेसिस होगा. मतलब पहले मेगास्पोर बनेगी. एक मेगास्पोर का आपको पता है देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ माइटोसिस, पर यहाँ पर जो माइटोसिस होंगे वो यन सेल की मदर सेल है, उससे यन सेल की डॉटर सेल बनाएंगे. ठीक है, 2n से 2n नहीं बनाते हैं. माइक्रो गैमेटोजेनेसिस या मेगा गैमेटोजेनेसिस में जो भी माइटोसिस हो रहा है उसके अंदर मदर सेल जो है वह मदर सेल gives the young mother cell and daughter cell is also the young. It means the both generation of the cell having a same ploidy status. That's why we calling this the equational cell division. Equational cell division is the mitosis. Yes, this is the concept. और this is इससे आपको पता चला होगा कि यहाँ पर यह स्पोरोफाइट था. स्पोरोफाइट ने कोई गैमेटोफाइट बनाया, और गैमेटोफाइट बनाने के लिए क्या करना है? फाइट इज द प्लांट. PHYTE, फाइट का मतलब होता है प्लांट. गैमेटोफाइट मतलब द प्लांट बॉडी which carry the gametes on it. जिस प्लांट बॉडी के ऊपर गैमेट्स रहेंगे उसको कहना है गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट का मतलब क्या है? जिस प्लांट बॉडी के ऊपर
स्पोर्स रहेगी उसको कहना होता है स्पोरोफाइट, बिकॉज स्पोरो means the spores and phyte means the plant body which having a spore on which is called the sporophyte. तो यह कॉन्सेप्ट था gametophyte and sporophyte का. Next concept I want to clear, that is the जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वह प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, आई थिंक मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे आपको यह चीज बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी. तो आई एम सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू just a minute. I am showing you one video. If it will be successfully play, then we will go ahead. ये जो कॉन्सेप्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का. Sir, sorry for interruption. So many messages are there about the voice. Yes sir, yes sir. Voice clear नाही असं बरेचसे मेसेज आलेले आपल्याला. Voice break होतोय. Voice clear. हा हा. तर मला असं वाटतं की तुमचा जो व्हिडिओ आहे ना तो जर समजा ऑफ केला तर क्लॅरिटी किंवा म्हणजे काय नेटवर्क प्रॉब्लेम. माझा व्हिडिओ माझा म्हणजे हा ओके ओके म्हणजे व्हिडिओ प्ले नाही करत सर मी. व्हिडिओ नाही प्ले केला तर आता व्हॉइस येतोय क्लिअर. व्हिडिओ ऑफ करा बरं. व्हिडिओ ऑफ. येस सर आय विल. येस सर. इट इज क्लिअर. व्हॉइस येतोय सर. येस ओके सर. मी चार्ट माझी ओपन नाही केल्यामुळे बऱ्याच मुलांचे माझ्यापर्यंत मेसेज आले नाही, कारण चार्ट मला स्क्रीनवर आल्यावर बऱ्याच वेळेला डिस्टर्ब करते. ओके व्हॉइस इज क्लिअर. ओके तर गॅमेटोफाइट म्हणजे काय, स्पोरोफाइट म्हणजे काय, हा कॉन्सेप्ट आपण आता क्लिअर केला. सेकंड थिंग्स आय वॉन्ट टू say that is the double fertilization. Double fertilization is the process in which there are two different fertilization process completing. आपको पता है कि इसके ऊपर जो जर्मिनेटेड पोलन है, जर्मिनेटेड पोलन के ऊपर यह जो दो ब्लू कलर से दिख रहे हैं, these two are the male gametes. Finally it will come on the tip of the tube. देन यह ट्यूब जो है वो बढ़ता हुआ यहां से स्टिग्मा से लेकर वह अपने ओव्यूल तक लीड करेगा. वो कैसे करता है यह चीज आपने पढ़ी होगी. और उसके बाद आपको यह बात पता है कि वहां पर जो दो गैमीट्स है पोलन ट्यूब के ऊपर, उसमें से एक गैमीट जो है वह एग के साथ फ्यूज होगा. एग जो है वो यहां पर रहेगा, दिस इज द एग, और एग के बाजू में दो जो हैप्लॉइड सेल रहेगी. यहां पर ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है जिसको कि आप एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसके अंदर जो 8 न्यूक्लियस है वो सारे की सारे हैप्लॉइड है, वो सारे के सारे न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, वो सारे के सारे न्यूक्लियर हैप्लॉइड है. पर फिर भी यहां पर आए हुए जो दो मेल गैमेट है वह भी हैप्लॉइड है. तो इनमें से एक मेल गैमेट जो है वो एक के साथ फ्यूज करेगा, दूसरा मेल गैमेट जो है वो यह पोलर न्यूक्लियाई जिसको आप कहते हैं उसके साथ फ्यूज करेगा. यहां पर N है प्लॉइडी स्टेटस एग सेल का, और उसके साथ एक N टाइप का मेल गैमेट फ्यूज होगा, तो उससे बनेगा 2N एम्ब्रियो. फर्स्ट वो जाइगोट बनेगा, उसके बाद उसके अंदर माइटोसिस होगी और वह माइटोसिस उसको लीड करेगी कि वहां से वह बनाएगा कोई एम्ब्रियो. और जो दूसरा मेल गैमेट था उसका भी प्लॉइडी स्टेटस हैप्लॉइड था, वह N टाइप का था, और यहां पर पोलर न्यूक्लियाई का प्लॉइडी स्टेटस क्या है, 2N नहीं है और N भी नहीं है, वह है N+N, क्योंकि वहां पर एक ही सेल में दो अलग अलग न्यूक्लियस है और हर एक न्यूक्लियस के अंदर एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए हम उसको कहते हैं डाइकैरियन. हर एक न्यूक्लियस N टाइप का है, ऐसे दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं N+N. N+N के साथ कोई मेल गैमेट और आकर फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा, N+N+N मतलब 3 times N. लेटर ऑन उनका कैरियो फ्यूजन होगा. कैरियन मींस न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तो एक न्यूक्लियस के अंदर फाइनली कितने सेट क्रोमोसोम के आएंगे, तो वो आएंगे ट्रिप्लॉइड.
ओके, तो इसलिए आपको यहां पर बनने वाली पहली सेल जो होती है उसको कहते हैं पेन, PEN। क्या फुल फॉर्म होता है PEN का? उसे क्या लीड करेगा? उससे लीड करेगा वह PEN सेल जो बनेगी, वह सेल बनाएगी इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में भी, क्योंकि हम जो चीजें खाते हैं, अगर राइस हो या गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, हर एक चीज जो है वह हम उसका एंडोस्पर्म खाते हैं। जिसको हम आटा कहते हैं, वो आटा किस चीज से आता है? दैट विल बी द इंडोस्पर्म। ओके, so this is a very important why the plant produce the endosperm in its seed, because for the survival of that embryo until it will become the part of photosynthesis, until it will start the photosynthesis. So photosynthesis can be मेकिंग इट्स फूड। जब तक वह अपना फूड नहीं बनाता है तब तक के लिए उसने अपनी खुद की बैटरी का बैकअप जो लेकर रखा है, वह बैटरी का बैकअप हम कहते हैं इंडोस्पर्म है, वह इंडोस्पर्म है। तो इसी तरीके से दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुए। एक फर्टिलाइजेशन हुआ एग के साथ मेल गैमीट का, दूसरा फर्टिलाइजेशन जो हुआ है वह फर्टिलाइजेशन हुआ है मेल गैमीट के साथ पोलर न्यूक्लियाई का। पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी दो थी एक ही सेल में, इसलिए हम उसको कहते हैं वो सेकेंड फर्टिलाइजेशन है। और एक ही साथ यह दो तरीके के फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज द वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन यह एंजियोस्पर्म का एक बहुत ही एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यह कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत अंदाजा इसका आ चुका है। थर्ड टॉपिक व्हिच आई वांट टू मेक यू क्लियर, दैट इज द मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील का बहुत ही एक पॉपुलर एग्जांपल हम जो पढ़ते हैं, दैट इज द ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। लैंडस्टेनर ने जिसको खोजा है, उन्होंने अपने अंदर जो ब्लड ग्रुप है, किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का AB हो सकता है, किसी का B हो सकता है, किसी का O हो सकता है, पर कुल माने तो इसके अलील्स कितने हैं? अलील्स कितने हैं? 3 तरीके के अलील होते हैं, 3 अलग अलग अलील्स हैं। I0, IA, IB, ऐसे 3 अलील आपने पढ़े होंगे। तो इसमें से बहुत अलग अलग जो फिनोटाइप्स उससे प्रोड्यूस होते हैं, फिर भी यहां पर हम कहते हैं मल्टीपल अलील। पर मल्टीपल अलील कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ऑन द पॉपुलेशन, क्योंकि एक इंसान, एक ह्यूमन, मैक्सिमम एक प्लांट अगर डिप्लॉयड है तो मैक्सिमम उसमें से कितने अलील ले सकता है? किसी एक जीन के 50 अलील हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 50 की 50 अलील एक इंडिविजुअल के अंदर जाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक इंडिविजुअल में ज्यादा से ज्यादा कितने अलील जा सकते हैं? तो यह चीज मैंने बताई है, ज्यादा से ज्यादा 2 अलील जा सकते। क्यों? क्योंकि अपने पास 2 ही सेट है क्रोमोसोम के हर एक सेल में। इन 2 सेट से हम यह जान सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने डिफरेंट अलील एक साथ लेकर जा सकते हैं। तो 2, वह 2 अलग होते तो उस चीज को हम कहते हैं जेनेटिक्स की भाषा में हेटेरोजाइगोस है। अगर दोनों ही सेट पर एक ही तरह का अलील है तो उसको हम कहते हैं होमोजाइगस है। ठीक है, तो दीज वेयर सम बेसिक्स व्हिच आई फेल्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू क्लियर विद दैट, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। फिर वापिस चलते हैं अपनी सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट पर। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी पढ़ने के लिए हम वापिस उस टॉपिक पर जब जाए, यहां पर ये गूगल स्लाइड्स है, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड आने में टाइम ले रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी आई थिंक नॉट दैट मच गुड, ऐसे तो रोज नहीं करता है। सर से मेरी बात हो चुकी है कि यहाँ पर बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है। यस, आपने कभी सोचा है कि कोई प्लांट खड़ा है, कोई ट्री खड़ा है, उसके ऊपर फ्लावर आया है और उस फ्लावर के ऊपर बिल्कुल उसी के स्टिग्मा पर, फ्लावर की जो स्टिग्मा है उसके ऊपर कौन कौन से पोलन आकर बस सकते हैं? यहां पर देखा जाए तो प्लांट्स को पता नहीं है, पॉलिनेटिंग एजेंसीज को भी पता नहीं है कि किस ट्री का, उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो टैक्सोनॉमिस्ट नहीं है, उनको भी ट्री पहचान में नहीं आते। मतलब कोई बर्ड यदि पॉलिनेटिंग एजेंट है तो वह किसी भी प्लांट से किसी भी प्लांट पर जा सकता है, उसको कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो खुला पंछी है, उसको कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकता है। पर उसको ये पता नहीं है कि मैंने किसी ए प्लांट से कोई पोलन लिया है और वह किसी ए के ही अलग प्लांट पर मुझे छोड़ना है, ये उसको पता नहीं है।
ही इज अननोन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दैट्स व्हाई अगर कोई वाइंड है, अनिमोफिली आप जिसको कहेंगे, कोई वाइंड है, वाइंड से हवा से कोई पोलन यहां से वहां तक मूव करते हैं, और वह पोलन्स जो है, वह पोलन्स यहां से वहां तक मूव करते हैं, तो हवा को यह चीज पता नहीं है कि इसके पोलन सही जगह पर जाने चाहिए। कहने का मतलब यही है कि आपका प्लांट कोई, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है, इफ यू आर कंसीडरिंग द मैंगो फ्लावर, तो मैंगो फ्लावर पर किसी अलग अलग तरह के पोलन ग्रेन आ सकते हैं। हिबिस्कस के पोलन ग्रेन भी मैंगो पर आ सकते हैं, नीम के भी आ सकते हैं, टैमारिंड के भी आ सकते हैं। इसके अलावा जितने सारे प्लांट्स उसके अगल बगल में रहेंगे और जितनी पॉलिनेटिंग एजेंसीज उसको विजिट करेंगी, उतने डिफरेंट तरह के पोलन ग्रेन्स उस मैंगो के फ्लावर पर आएंगे। पर कहने का मतलब यह है, लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट, ऐसा होने के बाद रिजल्ट क्या रहेगा, नतीजा क्या रहेगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट। उसके ऊपर, मैंगो के फ्लावर के ऊपर अलग अलग तरह के अलग अलग पोलन ग्रेन आकर तो बस गए, पर उससे कोई अलग फ्रूट बनाएगा क्या? उससे बनने वाला फ्रूट कौन सा रहेगा? उससे बनने वाला फ्रूट तो वही रहेगा जो आपको दिख रहा है। मैंगो प्लांट सिर्फ मैंगो के ही फ्रूट बनाएगा, टैमरिन प्लांट सिर्फ टैमरिन के ही फ्रूट बनाएगा। तो दिस इज, इट मीन्स देयर आर सम स्पेसिफिसिटी, देयर आर सम स्पेसिफिसिटी। यहां पर कुछ एक ऐसी चीज है, वो खुद के पोलन को ही पहचानता है, दूसरों के पोलन को वो रिजेक्ट करता है, दूसरों के पोलन को वो ज्यादा इंटरटेन नहीं करता है, भले ही वो उसकी स्टिग्मा के ऊपर आकर बस गए, क्योंकि उसको तो कोई लिमिट था ही नहीं। That is the things which made that this is the very important thing, and these things made possible to make the self identity in nature. Every individual can able to its survive its ability or its identity on the earth. हर एक प्लांट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई टैमरिंड का प्लांट है उसको कोई मैंगोज आ गए, मैंगोज के प्लांट को कोई, हाँ वैसी प्रैक्टिसेस भी पॉसिबल है, कोई डेवलप्ड जो एडवांस टेक्निक्स है इसके थ्रू, पर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं नेचुरली दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, एक मैंगो का टाइप है, उसका एक वैरायटी है, दूसरे वैरायटी के ऊपर जाकर गिरा है, वहां पर वो फेवर करेगा कि उसका पॉलिनेशन होना है, उससे सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होना है, और उसके जो फाइनल फ्रूट्स है वह भी बनने चाहिए। यहां पर ये स्लाइड्स पर मैंने जो डाउट्स, जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये अगर आपको यह क्वेश्चन आता है, अपने मन में यह क्वेश्चन आता है, तभी आपको सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी पता चलेगी। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी पता चलने के लिए आपको यह चीज पता होनी जरूरी है कि किसी एक स्टिग्मा के ऊपर तरह तरह के पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं, फिर भी वह सिर्फ अपने को जो पोलन ग्रेन उसके साथ कॉम्पैटिबल है, उसके साथ मैच कर रहे हैं, उसी को ही फेवर करेगा, उसी का ही वो क्या करेगा, उसी से ही वो पोलन ट्यूब बनाएगा, जिससे उसकी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। तो बहुत अलग अलग तरह के पोलन ग्रेन हर एक स्टिग्मा पर आते भी है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं होगा जिससे कि वह कोई अलग फ्रूट बनाएगा, क्योंकि नेचर ने वहां पर स्पेसिफिसिटी, हर एक के बीच में कॉम्पैटिबिलिटी दे चुका है। तो यहाँ पर यह यदि फ्लावर है मैंगो का, यह स्टिग्मा है मैंगो का, इसके ऊपर वही पोलन ग्रेन सक्सेस हो पाएंगे जो पोलन ग्रेन मैंगो के पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो यह ब्रॉड कॉन्सेप्ट है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इससे भी थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट व्हिच इज डिस्प्लेड राइट नाउ। सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी इसमें से भी कुछ बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, वो क्या कि एक ही प्लांट्स, इसमें खुद के ही मैंगो के प्लांट ने यदि खुद के ही स्टिग्मा के ऊपर खुद के ही पोलन यदि लैंडिंग कर दिए, तो उसमें से वह पोलन जर्मिनेट होकर भी फर्टिलाइजेशन तो नहीं जा सकते, या फिर जर्मिनेट ही नहीं हो सकते। इसके बेसिस पर इसकी दो क्लासिफिकेशन किया हमने, दो अलग अलग ग्रुप में। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ SI, means the self incompatibility. First classification, that is the interspecific self incompatibility, and second one is the intraspecific self incompatibility. इसके नाम में ही हर एक चीज है। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी यदि दो अलग अलग स्पेसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में है तो उसको इंटरस्पेसिफिक कहना है। मतलब मान लो कि दो अलग अलग मैंगो प्लांट है, एक की वैरायटी है अल्फांसो, दूसरे की है लंगरा। अल्फांसो का पोलन लंगरा के ऊपर जाता है,
तो भी वह, यदि पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा तो भी सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, यदि नहीं बनाएगा तो उनके बीच में किस तरह की सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी है, तो इंटरस्पेसिफिक। एक ही मतलब दो दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में वह सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी है, इसलिए उसको इंटरस्पेसिफिक कहेंगे। इंट्रास्पेसिफिक, लंगरा और अल्फांसो जो थी वो स्पेसीज नहीं थी, वो दोनों भी मैंजीफेरा इंडिका है, वह वैरायटीज थी, वह वैरायटीज थी। आपको पता है कि स्पेसीज के अंदर जो क्लासिफिकेशन होता है डिफरेंट टाइप का, उसको वैरायटी कहते हैं। प्लांट्स के बारे में, यदि आप एनिमल्स के बारे में कह रहे हैं तो उसको रेसेस कहना होता है, यदि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको आप स्ट्रेन्स नाम से जानते हैं। वैरायटी, रेसेस एंड स्ट्रेन्स। वैरायटी आर इन प्लांट्स, strains in microorganism like bacteria and races like the animals. Okay, अलग अलग टाइप स्पेसीज एपिथेट के अंदर जो भी ग्रुपिंग्स रहेगा वह रहेगा प्लांट्स के अंदर। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वैरायटी। तो दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में यदि कोई दो अलग अलग स्पेसीज एक दूसरे को फेवर नहीं कर रही है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उसको कहा जाएगा इंटरस्पेसिफिक सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। और एक ही स्पेसीज के दो अलग अलग वैरायटी या दो अलग अलग इंडिविजुअल उसको नहीं कर रहे होंगे तो उसको कहना है इंट्रास्पेसिफिक सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। पर यह कोई ज्यादा, यह ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आता है, क्योंकि यह बहुत ही आसान है, हर कोई इसको बड़ी आसानी से सहज उसको ध्यान कर सकता है। तो यहां पर हम आगे चलते हैं कि सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी को 1954 में लेविस ने दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक था होमोमॉर्फिक और दूसरा था हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम। होमोमॉर्फिक जो है, इसके अंदर मॉर्फोलॉजी में कोई अलग अलग डिफरेंसेस नहीं होते, इसलिए उसको होमोमॉर्फिक कहते हैं। और दूसरा जो है वो हेटेरोमॉर्फिक, जिसके अंदर हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी यदि है तो फ्लावर्स के स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट रहेंगे। हेटेरो मींस डिफरेंस, होमो मींस सेम। ओके, तो यहां पर हम पहले देखेंगे हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वजह से बहुत ही वेटेज कम है, पर यह हम नहीं कह सकते कि ऐसा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। चांसेस है इसके ऊपर क्वेश्चंस बनने के भी चांसेस हो सकते हैं, इसलिए पहले हम हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम्स को समझ लेते हैं शॉर्टली, then we will going on understanding the homomorphic self incompatibility. Or homomorphic self incompatibility is a very important by the view of net set get. Okay, so this is the classification of self incompatibility. self incompatibility को हमने homomorphic and heteromorphic ऐसे दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। होमोमॉर्फिक में हम कहने जा रहे हैं कि होमोमॉर्फिक में फ्लावर जो रहेंगे वो सारे के सारे फ्लावर एक जैसे ही रहेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो एक जैसी रहेगी, इसलिए उसको होमोमॉर्फिक कहते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेटेरोमॉर्फिक, देन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर्स इन दिस आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होती है उसकी भी फिगर्स मैंने यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड की है। होमोमॉर्फिक को जब डिटेल देखेंगे तब हम गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक के बारे में बात करेंगे। ओके, सो let's move to the heteromorphic first. In heteromorphic self incompatibility, flowers of different incompatibility groups are differs in morphology. वही बात हम कह रहे हैं कि इसके जो फ्लावर रहेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो अलग तरीके की रहेंगी। यहां पर एक एग्जांपल दिया है प्रिमुला प्लांट का, उसके अंदर दो अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है पिन फ्लावर और दूसरा होता है थ्रम फ्लावर। ऐसा क्यों किया है इस प्लांट ने, दो अलग अलग फ्लावर्स क्यों बनाया है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। ऐसे अलग अलग फ्लावर बनाने से यह प्लांट यह चीज साबित करना चाह रहा है, यह चीज अचीव करना चाह रहा है कि इसके ही पोलन इसके ही स्टिग्मा के ऊपर आकर ना गिरे, इसके खुद के ही पोलन खुद की स्टिग्मा पर आकर ना गिरे और उनके बीच में फर्टिलाइजेशन ना हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नेचर ने इसके अंदर इवोल्यूशन में दी है। तो हम कह रहे हैं कि इसके अंदर दो अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं जो कि दो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर होते हैं। एक फ्लावर होता है जिसको हम कहते हैं पिन फ्लावर और दूसरा होता है थ्रम फ्लावर। पिन फ्लावर को आप देखो तो पिन फ्लावर के अंदर जो एंड्रोशियम है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है और गाइनोशियम जो है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। तो यहां से इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन गिरेंगे भी तो इसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर नहीं गिरेंगे, और इस वजह से इस पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा।
हाँ, यहाँ पर आपको थ्रम फ्लावर्स है, थ्रम फ्लावर्स में यह चांस है कि यहाँ के इसके पोलन जो है इसके ऊपर गिर सकते हैं, तो यह फेवर नहीं करेगा, यह फेवर नहीं करेगा क्योंकि इसकी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है जो नेक्स्ट लेवल की भी हो सकती है आगे जाकर। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर मॉर्फोलॉजी अलग अलग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वह अपने खुद के ही दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा फर्टिलाइजेशन होने से हमारी जो प्रोजेनी बनेगी, दैट प्रोजेनी विल नॉट बी फिट जेनेटिकली, सो देयर सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। और एवरी बायोलॉजी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज ट्राइंग टू मेक सर्वाइव। हर कोई चाहता है कि मेरी बहुत बड़ी आबादी हो जाए, मेरे बहुत सारे बच्चे हो जाए, और मेरी जो इवोल्यूशन है, दिस इज नेचुरल टेंडेंसी दैट प्लांट्स आर आल्सो ट्राइंग टू डू दिस। ओके, सो यहां पर यह प्लांट्स की भी टेंडेंसी है कि मेरी संख्या बहुत ज्यादा से ज्यादा हो जाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर्स बनाता है, वो बहुत रसीले फ्रूट्स बनाता है जिसको आप खाओ, और उसके जो सीड्स है या जिसके फ्लावर्स के थ्रू उसके जो पोलन है उसका ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो जाए। इसीलिए तो नेचर यही चाहता है कि इसका स्प्रेड ज्यादा हो, इनकी संख्या ज्यादा बढ़ी जाए। दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी। Every individual is trying to make its number more, so its survival on the earth is prolongly or continued. Okay, so this is the heteromorphic self incompatibility, जिसके अंदर आपको इसका सारा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पिन फ्लावर्स जो है उसकी लॉन्ग स्टाइल जो है वो लॉन्ग थी। यह सारी चीजें अभी जो हमने डिस्कस की है वह सारी इस प्रेजेंटेशन में आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा। और आगे जब बात आती है द इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन इन पोलन ग्रेन्स आर डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट्स। अगर इसके जीनोटाइप को देखा जाए तो इसकी इनकम्पैटिबिलिटी वाले कोई जीन यहाँ पर हमें मिले हैं, कोई जीन है जो कि ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी मतलब खुद के ही मेल का खुद के ही फीमेल के गैमेट से फर्टिलाइजेशन होने में बाधा डालने वाले ऐसे कोई जीन है, उन जीन की जो डिस्कवरी हो चुकी है उसके अंदर बारे में आगे हम बात करेंगे। द जीन गवर्निंग द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन हैज टू अलील्स, तो उसके दो अलील होते हैं एट कम से कम, और उसको हम एस नाम से जानते हैं। एस के दो फॉर्म है, एक कैपिटल एस एक स्मॉल एस। कैपिटल एस यदि हम प्रिमुला प्लांट के बारे में बात करेंगे कि कैपिटल एस जो है वो उसके अंदर डोमिनेंट था, और कैपिटल एस से बनेगा थ्रम फ्लावर। थ्रम फ्लावर इज द डोमिनेंट, जबकि आपको बताया जाएगा कि कैपिटल एस स्मॉल एस टाइप का जीनोटाइप आएगा तो किस तरह का फिनोटाइप उससे बनेगा, तो उससे बनेगा थ्रम फ्लावर प्रिमुला प्लांट्स के अंदर। इसके कई सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है, प्रिमुला ही आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन सम स्पेसीज two genes each having a two alleles control the self incompatibility reaction. The incompatibility system is therefore heteromorphic sporophytic. Heteromorphic sporophytic क्योंकि इसके अंदर जीन्स भी है, वह जीन्स उसकी स्टाइल और जो एंड्रोशियम है इसकी लेंथ भी रेगुलेट कर सकते हैं, और आगे जाकर मॉलिक्यूलर लेवल पर भी वह असर कर सकते हैं। इसके अलावा भी नेचर के अंदर कई सारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है जो कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को दूर रखते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे डाइकोगैमी। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, मेज का एग्जांपल यहाँ पर दिया है जिसके अंदर आपको दिखती है प्रोटैंड्री। प्रोटैंड्री का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, मतलब इसके जो पोलन ग्रेन पहले मैच्योर बनेंगे। ठीक है, मतलब मेज के अंदर मेज के फ्लावर का आपको देखा होगा कि दिस इज द मोनोइशियस प्लांट बट फ्लावर्स आर द यूनिसेक्सुअल। मेज का प्लांट हर किसी ने देखा होगा कि ऊपर जो टैसल आता है दीज आर द मेल फ्लावर, और नीचे जो कर्नेल आता है दीज आर द फीमेल फ्लावर्स। उसके खुद के ही पोलन खुद के ही स्टिग्मा पर गिरकर उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, पर वो नहीं चाहता है, मेज के अंदर वो नहीं चाहता है, तो मेज के अंदर आपको डाइकोगैमी दिखती है। डाइकोगैमी मतलब मेज के जो खुद के ही एक प्लांट की अगर हम बात करें तो उसके मेल फ्लावर्स के अंदर पहले मैच्योरिटी आती है और फीमेल फ्लावर के अंदर बाद में मैच्योरिटी आती है। मतलब भले ही उसके पोलन उसकी स्टिग्मा पे ऊपर जाकर गिरे, पर उसमें उससे कोई नहीं अचीव होगा, क्योंकि वह जर्मिनेट भी नहीं कर सकते। जर्मिनेट हो भी जाएंगे तो क्योंकि वहां पर फीमेल गैमेट अब तक भी कोई डेवलप नहीं हो चुका है,
इसलिए उससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल, और इट अवॉइड द सेल्फ फर्टिलाइजेशन बाय द टेक्निक दैट वी आर स्टडीइंग, डाइकोगैमी। कुछ प्लांट्स में इसके ऑपोजिट भी होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोगाइट, मतलब पहले जो फीमेल फ्लावर्स है उसका मैच्योरेशन होगा और बाद में मेल फ्लावर्स का होगा, मतलब दोनों का समय एक साथ नहीं आएगा। इससे क्या होगा, इसका एग्जांपल बाजरा या मिलेट जिसको हम कहते हैं, बाजरा के अंदर जो फीमेल फ्लावर्स है वह पहले मैच्योर होती है और मेल फ्लावर्स जो है वो बाद में। हम एक प्लांट की बात कर रहे हैं, सारे के सारे प्लांट्स एक फील्ड की नहीं बात कर रहे हैं, हम एक प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। एक प्लांट के पास दो अलग अलग फ्लावर है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर के अंदर क्या होगा, मेल फ्लावर के अंदर पहले मैच्योरिटी आएगी, ऐसी चीज होती है मेल्स के अंदर, हम उसको कहते हैं प्रोटेंड्री। हम अभी प्रोटोगाइनी की जब बात कर रहे हैं तो यह चीज होती है बाजरा में। इसमें होता क्या है, इसमें यही चीज होती है कि मेल और फीमेल फ्लावर में से फीमेल फ्लावर की मैच्योरिटी पहले आती है और मेल फ्लावर जो है वह बाद में मैच्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन को बाधा बनाई जाती है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इन नेचर, दैट इज द हर्कोगैमी। हर्कोगैमी, आपको यह हिबिस्कस का फ्लावर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको यह स्टिग्मा ऊपर दिख रही है, जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है ये स्टिग्मा है, और जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है यह जो कोई मेल फ्लावर्स, जिसकी वजह से मेल फ्लावर्स नीचे है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है, इसलिए पॉलिनेशन के चांसेस कम है, पॉलिनेशन के चांसेस कम है, इसलिए फर्टिलाइजेशन के सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी बहुत ही कम है। यदि इसके अंदर यह स्ट्रक्चरल डिफरेंस है तो उसको हम पढ़ते हैं हर्कोगैमी हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट थिंग्स which is the part of our today's lecture, that is the self incompatibility। उसमें ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आपने पढ़ा होगा, सेल्फ स्टेरिलिटी कैसे आती है, ऑटोगैमी मतलब क्या और जिटनोगैमी मतलब क्या, यह आपने पढ़ा होगा कि किसी फ्लावर, एक ही फ्लावर के, मतलब यहां पर एक ही फ्लावर के अंदर उसके ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के ऊपर जाते हैं तो वह ऑटोगैमी होती है। जिटनोगैमी मतलब प्लांट एक है पर फ्लावर अलग है, प्लांट एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में यदि पोलिनेशन होता है तो उसको जिटनोगैमी कहा जाता है। यह भी एक स्ट्रेटेजी है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी की। ओके, एंड फोर्थ वन विच इज कॉल्ड द पोलन प्रीपोटेंसी। पोलन प्रीपोटेंसी क्या होती है, एक ही स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में उनके पोलन की मैच्योरिटी अलग अलग वक्त पर यदि होती है, मतलब मैंगो के कोई दो अलग अलग ट्रीज है, एक के पोलन ग्रेन बहुत पहले मैच्योर होते हैं और दूसरे उसके बगल में जो है उसके पोलन ग्रेन उसके बाद में, उसका जो समय है वो बाद में है। इसके थ्रू पोलन प्रीपोटेंसी इसको कहेंगे और इसके थ्रू वह अपने खुद के ही प्लांट से अपना सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने से बचाएगा। उसको हम सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी नहीं कहते, उसको हम पोलन प्रीपोटेंसी कहते हैं। यह हम पढ़ना जरूरी इसलिए मान रहे हैं कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी जैसी कुछ अलग स्ट्रेटेजीज भी प्लांट्स के पास है। यूनिसेक्सुअलिटी, कुछ प्लांट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल के भी दो अलग अलग टाइप आप कह सकते हैं, मोनोइशियस डाइशियस। ठीक है, मोनोइशियस और डाइशियस प्लांट्स आप समझते होंगे, दोनों भी सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पर है तो उसको हम मोनोइशियस कहते हैं। डायोशियस मतलब हर एक सेक्स ऑर्गन, मतलब हर एक मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, देन वी कैन से दिस इज द डायोशियस। These are also the strategy which is avoiding the this self fertilization। और अब हम बात करते हैं होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसका महत्व जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा है। इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होगा, सारे के सारे फ्लावर्स एक जैसे ही दिखेंगे आपको, ऑल फ्लावर्स लुक्स लाइक, बट डिफरेंस इन इट्स जेनेटिक्स, डिफरेंस इन इट्स biochemistry। Okay, the incompatibility reaction is controlled either by genotype of the gamete, उसको हम कहेंगे गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। यदि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी के ऊपर किसका कंट्रोल होगा तो वह कंट्रोल होगा प्लांट के जीनोटाइप का, तो उसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट। क्योंकि पहले मैंने आपको गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट क्लियर किया है। गैमेटोफाइट का प्लॉइड स्टेटस कैसा रहेगा, गैमेटोफाइट का प्लॉइड स्टेटस n टाइप का रहेगा, स्पोरोफाइट का 2n टाइप का रहेगा। मतलब हम गैमेटोफाइट को कहते हैं वो हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट को कहते हैं वो डिप्लॉइड है। दिस इज द डिफरेंट genotypes which controlling the self incompatibility, on the basis of which we are classifying the
homomorphic self-incompatibility in two different parts. First is the gametophytic self-incompatibility, and second one is the sporophytic self-incompatibility. Okay, first understand what happening here. What happening here? Look at this. यहां पर आपको दिख रहा है कि यह जो मेल फ्लावर है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर, यह जो मेल पार्ट है, यह जो एंथर है, इसका जीनोटाइप है S1S2 टाइप का। और यहां पर आपको अलग अलग जीनोटाइप दिए हैं। यहां पर S1S2 है, मतलब बिल्कुल मेल फ्लावर जैसा ही यहां पर फीमेल फ्लावर का जीनोटाइप है। यहां पर आपको मेल फ्लावर से थोड़ा अलग, मतलब इसमें S1 तो कॉमन है, पर S3 मेल फ्लावर के पास नहीं था, जो कि फीमेल फ्लावर के पास है। और यहां पर S3 S4 टाइप का पिस्टिल है या फिर गाइनोशियम है, जो कि मेल से बिल्कुल अलग है। मेल के पास दो कंपोनेंट है S1 S2, मेल के पास दो कंपोनेंट है S1 S2। गैमेटोफाइटिक में कहीं पर वो पोलन ट्यूब फॉर्म कर रहा है, मतलब पोलन जर्मिनेशन सक्सेसफुली हो रहा है, कहीं पर वो नहीं हो रहा है। यहां पर अगर आप बात करो कि यहां पर जो दिख रहा है आपको, यहां पर ये जो चीज आपको दिख रही है, यह है मेल गैमेट, एंड दिस मेल गैमेट के पास S1 S2 है। यदि वह S1 S2 जैसे ही, मतलब 100% सेम फीमेल फ्लावर पर वह जाकर गिरते हैं, तो इससे पोलर ट्यूब बनना शुरू होती है, पर वह कंटिन्यू नहीं हो सकती है। एक बार पोलर ट्यूब बनना शुरू हो जाए, बट इट विल नॉट सक्सेसफुली कंप्लीट द फर्टिलाइजेशन। गैमेटोफाइटिक की एक खास बात है कि जिसमें पोलन ट्यूब बनना शुरू होता है, जो कि आगे मैं बताऊंगा। स्पोरोफाइटिक में कोई पोलन ट्यूब नाम की चीज शुरू से बनाने में बाधा डाली जाती है, पोलन ट्यूब नहीं बनती है यदि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है तो। ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं है तभी पोलन ट्यूब बनी। ठीक है, मतलब यहां पर आपको इस फिगर में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब यह जो प्लांट है वो अपने जैसा 100% जीनोटाइप है, तो उसको रोक रहा है, उसके साथ फर्टिलाइजेशन करने में उसकी बाधा डाल रहा है। इसलिए यहां पर ना तो S1 टाइप का पोलन सक्सेसफुल हो जाएगा, ना तो S2 टाइप का पोलन सक्सेसफुल हो जाएगा। माय वॉइस इज क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर सर? सर यस, Okay. yes sir, yes. ओके सर, आई एम कंटिन्यूइंग। तो यहां पर हम दूसरे फीमेल प्लांट्स के बारे में यदि बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर आपको जीनोटाइप जो दिख रहा है वो इस तरीके का है, S1S3 टाइप का। दिस जीनोटाइप इज S1S3। S1S3 टाइप का जीनोटाइप है, और अपने पास मेल फ्लावर जो था उसके दो अलग अलग पोलन है, एक है S1 टाइप का, दूसरा है S2 टाइप का। Here these are two different polens which having a difference in their genotype, पर इसमें से एक को फेवर कर रहा है, दूसरे को फेवर नहीं कर रहा है। किसको फेवर कर रहा है? S1 को फेवर नहीं कर रहा है, क्योंकि फीमेल प्लांट के जीनोटाइप के अंदर S1 है। S2 को फेवर कर रहा है क्योंकि S2 इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर, नॉट द पार्ट ऑफ जीनोटाइप ऑफ फीमेल फ्लावर, इसलिए वह S2 को यहां पर अलाउ कर रहा है कि यहां से इसकी ट्यूब भी बनेगी और वह सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन भी करेगी। तो यहां पर S2 के लिए इस केस में आपको S2 के लिए कोई सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं दिख रही है, यह सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन कर रहा है। पर यहां पर S1 के लिए कोई सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दिख रही है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सिर्फ S1 के लिए है, यहां पर S2 के लिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वह सक्सेसफुली अपना फर्टिलाइजेशन यहां पर करने में कामयाब हो रहा है। नेक्स्ट फ्लावर जो कि आपको दिख रहा है S3 S4 का है, और हमारा मेल फ्लावर जो है वह S1 S2 का है। तो यहां पर आपको दिखेगा कि S3 S4 और S1 S2 में कोई भी एक सिंगल फैक्टर, कोई भी सिंगल अलील यहां पर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए S1 और S2 दोनों की दोनों S3 S4 टाइप के जीनोटाइप वाले फीमेल फ्लावर्स पर सक्सेसफुली अपना फर्टिलाइजेशन करने में कामयाब हो रहे हैं। तो यही बात हम यहां पर कह रहे हैं कि गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, और वह सिर्फ यहां पर पोलन के जैसा यदि कोई भी एक, मतलब यहां पर फीमेल की जो स्टाइल है, ये जो स्टिग्मा है,
स्टिग्मा स्टाइल फीमेल फ्लावर के अंदर एक भी फैक्टर यदि मैच कर रहा है तो वह फर्टिलाइजेशन होने में अपने ऊपर, मतलब दोनों में से किसी एक के साथ होगा। ये तीनों भी कंडीशंस हमने देखी है। इसके ऊपर कोई भी डाउट आपको आए तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपको हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, तो इसको हम वही कह रहे हैं कि ये चीज हो रही है क्योंकि इसके अंदर उसका गैमेटोफाइटिक जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है वह इफेक्ट कर रहा है। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। स्टिग्मा कैसा था, स्टिग्मा डिप्लॉइड था। पोलन कैसा था, पोलन हैप्लॉइड था। तो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ऑकर्स व्हेन द yes allele of the pollen grain matches either of the S allele of the stigma। मतलब पोलन का अलील स्टिग्मा के दोनों अलील में से किसी एक के साथ यदि मैच कर रहा है तो वह सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, वही हम बताना चाह रहे हैं। इन द गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी द पोलन ट्यूब begins developing but stops before reaching the micropyle। ये चीज मैंने आपको अभी बताई कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होना इसमें स्टार्ट तो होता है पर वो कंप्लीट नहीं होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज द स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में कंडीशन और भी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। और भी स्ट्रिक्ट मतलब यदि इसके अंदर यहां पर S1 है S2 है, कंडीशंस यह मेल का फ्लावर का जीनोटाइप हमने एक जैसा ही रखा है। यहां पर सारी कंडीशंस एक साथ रखने पर क्या होता है तो देखिए, इसके साथ S1 और S2 दो तरीके के अलग अलग फैक्टर में से कोई एक सक्सेस नहीं हो रहा है। पहली वाली फिगर में हो रहा था क्या, पहली वाली फिगर में आपको क्या दिख रहा है, तो पहली वाली फिगर में भी वो नहीं हो रहा था, पर डिफरेंस एक आपको दिख रहा है। ये गैमेटोफाइटिक वाला पार्ट में कह रहा हूं, इसमें पोलन ट्यूब एटलीस्ट फॉर्म तो हो चुकी थी। गैमेटोफाइटिक में एटलीस्ट पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होना शुरू होता है, पर आपको यहां आने के बाद यहां पर आपको पोलन ट्यूब कोई नहीं दिख रही यहां पर। इट मींस स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज वेरी स्ट्रिक्ट, it is a very narrow, it won't allow either formation of or initiation of the pollen tube। यहां पर इनकम्पैटिबिलिटी है तो वो है, थोड़ा भी एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, जो कि गैमेटोफाइटिक में इनकम्पैटिबिलिटी होने के कारण भी ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा था। वहां पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कम था, लिमिटेशंस कम थे। यहां पर लिमिटेशंस बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट फिगर की बात करो, इस फिगर में आपको फीमेल फ्लावर का जीनोटाइप है S1 S3 टाइप का। फीमेल फ्लावर का जीनोटाइप S1 S3 टाइप का है और मेल का है अपना S1 S2। इसमें से S1 भी सक्सेस, S1 वाला पोलन भी सक्सेस नहीं हो रहा है, S2 वाला पोलन भी सक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है। पहले वाले चीज में ऐसा नहीं होता था, पहले वाले में यहां पर जो यहां पर 100% से में वो नहीं होता था। यहां पर S3 S2 तो सक्सेस होना चाहिए, जो कि फीमेल प्लांट्स के पास नहीं है, फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अगर आपको समझनी है तो यह सेंटेंस में कहने जा रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर जो रिकॉग्निशन प्रोसेस होता है, इट इज फ्रॉम द प्रोटीन्स विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन, एंड एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन हैविंग अ ओरिजिन स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक ओरिजिन होता है एक्साइन का। इसका मतलब स्पोरोफाइटिक के जो दोनों भी अलग अलग फैक्टर होते हैं, दोनों भी अलग अलग अलील्स जो होते हैं, वह दोनों भी अलील्स का कंट्रीब्यूशन एक्साइन के अंदर होता है। तो यहां पर S2 इस फीमेल प्लांट का भले ही पार्ट नहीं है, पर इसके अंदर जो एक्साइन बनी है इस S2 के अंदर, उसके अंदर S1 है और वह S1 इस फीमेल फ्लावर के पास मैच कर रहा है। यह मैचिंग होने की वजह से यहां पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ गई है। किसी को भी मतलब S2 का वहां पर फैक्टर नहीं है, अलील नहीं है, फिर भी उसको वहां पर फर्टिलाइजेशन होने से रोका जा रहा है। ठीक है, दिस इज द केस। मतलब यहां पर स्ट्रिक्टनेस कैसा है, बहुत ज्यादा है। यहां पर अगर थोड़ा भी लेन देन उसके साथ है तो वो उसको एक्सक्यूज नहीं करेगा।
लेट्स मूव टू द लास्ट केस। यहां पर आपको दिखेगा कि सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमने देखा है कि S3 S4 टाइप का जो जीनोटाइप है फीमेल का और प्लांट का था S1 S2 का यही है। S1 S2 में से और S3 S4 का किसी एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, वह अलग अलग अलील है। यह अलग अलग अलील होने के कारण वो एक दूसरे को फेवर कर रहा है। फेवर कर रहा है, यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब यहां पर किसी भी टाइप की सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं है। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इन दोनों केस में एग्जिस्ट थी। यहां पर तो गैमेटोफाइटिक में भी थी। गैमेटोफाइटिक में ये सारी चीजें ऐसी थी, सिर्फ यहां पर गैमेटोफाइटिक में पोलन ट्यूब बन रही थी, यहां पर तो पोलन ट्यूब बनने का नाम ही मत लो। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है तो है, कोई किसी टाइप की कोई पोलन ट्यूब यहां पर नहीं बनेगी, कोई जरूरत नहीं है। इसको नहीं लेना है अपने अंदर तो उसको बिल्कुल एक्सक्यूज मत करो, ठीक है। यहां पर S1 S2 अलग है, S1 S3 अलग है। एटलीस्ट S1 को रिजेक्ट करना तो हम मान सकते हैं, पर S2 को रिजेक्ट किया जा रहा है यहां पर, क्योंकि S2 तो कोई पार्ट नहीं है इस फीमेल फ्लावर का। फिर भी उसको क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? रिजेक्ट करने का कारण क्या है? तो हमने कहा है यहां पर जो रिकॉग्निशन हो रहा है स्टिग्मा और पोलन का, वह एक्साइन के बेसिस पर हो रहा है। और एक्साइन का जो ओरिजिन है वो स्पोरोफाइटिक है। और स्पोरोफाइट मतलब दोनों अलील्स को वो रीड करेगा, दोनों अलील को रीड करेगा। S1 S2 को रीड किया तो उसके अंदर S1 एक कॉमन मिल गया, S2 भले ही कॉमन नहीं मिला है, पर S1 उसको रिकॉग्नाइज हो चुका है, क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज किसको किया है? पोलन की एक्साइन को किया है। किसने? स्टिग्मा ने। इसलिए यहां पर उसने उसको रिजेक्ट किया, उसको अलाउ नहीं किया, उससे जो फर्टिलाइजेशन होने वाला था उसको रोक दिया है। और लास्ट केस के बारे में बात करें, उपवास है। S3 S4 is completely different than the S1 S2. That's why here no any consideration of the rejection. यहां पर इनके बीच में कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा है, कोई भी एक अलील मैच नहीं हो रहा है। इस कारण इट कैन बी गोइंग अहेड सक्सेसफुली। फर्टिलाइजेशन यहां पर आपको होते दिख रहा है। जहां पर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली होता है वहां पर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी नहीं होती है। जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या है? तो वहां पर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है इस केस में। जहां पर यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, दिस टू थिंग्स नॉट एग्जिस्टिंग टुगेदर, यह कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिगर विच ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है, उसके ऊपर एक बार फोकस करें। क्या कह रहे हैं यहां पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यही दिखेगी कि यहां पर स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी occurs when one of the two S alleles of the pollen producing from sporophyte, not the gametophyte, matches one of the S allele of stigma. ऐसा क्यों हो रहा है? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो सेंटेंस है यह इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यह सेंटेंस क्लियर एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है कि यह यही बता रहा है आपको कि जो पोलन की एक्साइन वाल होती है, एक्साइन जो होती है उसका ओरिजिन जो है वो स्पोरोफाइट से होता है। उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो स्पोरोफाइट से होता है, और उसकी वजह से यहां पर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी आती है। इस वजह से इस टाइप की सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी को स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कहेंगे, ओके। और यही बात हमने डिस्कस की है कि होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में फ्लावर का स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं दिखेगा, फिर भी उसके अंदर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होगी। वह सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी क्यों होती है? इसकी खोज 1980 के बाद, लगभग 1987 में इसके ऊपर काम हुआ है। इसके मॉलिक्यूलर और इसकी बायो सिग्नलिंग के ऊपर जब काम हुआ तो पता चला कि इसके अंदर एक जीन है जिसको हम कहते हैं एस लोकस। जीन की पोजीशन को लोकस कहा जाता है, एक से ज्यादा है तो लोसाई भी कहा जाता है। The S locus consists the several physically linked genes that regulate the recognition and rejection of the pollen. हमने देखा है कि कई तरह के पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आकर बसते हैं, पर उसमें से हर कोई सक्सेस नहीं होता है। पहला रिजेक्शन हमने बताया था कि मैंगो के फ्लावर के ऊपर, मैंगो की स्टिग्मा के ऊपर हिबिस्कस के, टैमारिंड के और अलग अलग तरह के पोलन ग्रेन आकर बसेंगे। उसमें से सिर्फ मैंगो वाले पोलन ग्रेन को
सक्सेसफुली जर्मिनेट किया जाएगा। ये था ब्रॉड कॉन्सेप्ट। पर मैंगो के अंदर भी बात की जाए, मैंगो के मतलब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसा सिर्फ मैंगो के अंदर होता नहीं है ऐसा, पर अलग अलग प्लांट्स के अंदर होता है, जो एग्जाम्पल हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो वहां पर अब अगर खुद का ही मेल गैमेट खुद के ही फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करने से रोका जाने की जो विधि है उसको हम सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। मतलब जब खुद के ही दोनों अलग अलग गैमेट को फर्टिलाइजेशन होने से रोका जाएगा उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट some advanced things of this concept, and that is the self incompatibility response. It is genetically controlled by one or more मल्टी एलेलिक लोसाई। मतलब एक से ज्यादा अलग अलग जीन से यह जो प्रोसेस है वह कंट्रोल की जा सकती है। और किसी एक प्लांट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हर एक प्लांट में हर एक बार अलग अलग स्पीसीज में इसके अलग अलग नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, इसलिए हम फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते कि इतने इतने अलील होते हैं। हर एक स्पीसीज टू स्पीसीज अलील का नंबर जो है इस सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी को रेगुलेट करने का वो अलग होता है। यहां पर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन सेल्फ इनकम्पेटिबल पोलन एंड पिस्टिल और स्टिग्मा इज नेसेसरी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर अब तक की जो बातें थी वह सेल्यूलर लेवल की बातें हमने की है, आगे हम बातें करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएंगे, सिग्नलिंग कैसा होता है। आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। यह चीज अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो हम आगे चल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अपने खुद को अनम्यूट कर आप मुझे इसके बारे में जो डाउट्स है वह पूछ लीजिए। Just a 2 minutes doubt solving we are taking, then we are moving to the molecular concepts. किसी को कोई डाउट है तो वह पूछे। If students have any यदि आपको कोई डाउट है if students have any query they can ask. Yes, they can interact with sir and clear your ideas. अब तक की जो चीजें हमने पढ़ी है इसमें किसी को कुछ भी डाउट होगा, थोड़ा सिंगल डाउट भी होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट अभी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आगे मैं आपको कुछ मॉलिक्यूलर चीजें बताऊंगा जिससे आपको ये चीजें थोड़ी टफ लगेगी, एक्चुअली वो असल में तो टफ है नहीं। इसलिए जस्ट वेट, हमारे यहाँ पर कोई दूसरी आवाज आ रही है एक्सटर्नल, जस्ट वेट। कोई एक्सटर्नल वॉइस आ रहा है इसलिए हम 1 मिनट का गैप ले रहे हैं। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर, इसलिए डाउट नहीं हो सकते शायद। इसलिए स्टूडेंट्स में कोई डाउट नहीं। Yes, is anyone having a doubt? You may ask. If no, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है सर, इसलिए उनको शायद डाउट नहीं होंगे। Okay. Thank you. Okay. It is a very good thing. There are 2 possibilities. आपको सब कुछ समझ में आया होगा या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तभी आपको डाउट नहीं आएगा। I am expecting everything you understood. Okay. One question is there, sir. One question is there. Yes, in chat box. Sir, pollen formation. I just reading. Yes. Formation. Yes. Gametophytic. Yes, sir. Yes, sir. I'm reading this. Yeah. Yes, sir. Yes. This question is from Prajakta Mishra. Pollen formation in gametophytic self-incompatibility, there should be reason, and as you give reason for sporophytic because of pollen exant protein recognition. Why, sir? Yes, good question. ऐसा क्यों होता है? There are, आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि सेल इंटरेक्शन जो है
सिग्नलिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि लिगैंड एंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो हर एक प्रोटीन हर एक दूसरे प्रोटीन के साथ, मतलब कोलन का हर एक प्रोटीन स्टिग्मा के हर एक प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। उनके बीच में कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब उसके अंदर कोई फिक्स कम्युनिकेशन इवोल्यूशन के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर दो तरह के कम्युनिकेशन बन चुके होते हैं। जब हम स्पोरोफाइटिक कहते हैं तब कम्युनिकेशन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं एग्जाइम पार्ट से, और एग्जाइम पार्ट जो इवोल्व हो चुका होता है स्पोरोफाइट से। तो इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में यही कहना चाहते हैं कि ऐसा इवोल्यूशन हो चुका है। ऐसा इवोल्यूशन ने क्यों चुना है यह तो हम इवोल्यूशन को नहीं पूछ सकते, पर हम इसका आंसर में यही बता सकते हैं कि यहाँ पर जो रिकॉग्निशन हो रहा है वो एग्जाइम के साथ हो रहा है, और एग्जाइम के प्रोटीन के साथ होगा या इंटाइम के प्रोटीन के साथ होगा, ये होना हमारे हाथ की बात नहीं है। दिस इज द थिंग्स व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द नेचर, एंड दिस इज द साइंस। Science is the things which is already existed in nature and which we are studying or which we are understanding. That is the science. This is the evolution already done in nature. Okay. Any next question? I think Prajakta is satisfied from this answer. Prajakta, are you satisfied with the answer? Is that Yes, clear? if you have more doubts, you may if you are not clear that much, you may ask me later on also. Okay. Yeah, no problem. Okay. I think no more question. I will continue. Okay, sir. Yes, sir. Yes. Self incompatibility blocks fertilization between two genetically similar gametes, increasing the probability of new gene combination by promoting outcrossing. यही चीज हमने पढ़ी है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से इनब्रीडिंग, मतलब खुद के ही मेल के साथ खुद के ही फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज होने से रोका जाता है। इससे फायदा क्या होगा कि इससे जो जीनोटाइप बनेंगे वह जीनोटाइप अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले बनने के चांसेस ज्यादा है, और जितने अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे वह जेनेटिकली उतने फिट रहेंगे। इवोल्यूशन के दौरान अपने खुद के अंदर बदलाव करने के लिए वह बहुत ज्यादा तैयारी करके रहेंगे। इसलिए आउट क्रॉसिंग इज ऑलवेज बेटर देन द सेल्फ क्रॉस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here, there are some differences in gametophytic and sporophytic self-incompatibility, जिसके अंदर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर जो स्टिग्मा दिखेगा वो स्मूथ एंड वेटेड, दिस इज हैविंग अ स्मॉल सिक्रीशन, लिटिल सिक्रीशन ऑफ द स्टिग्मा, एंड इट इज वेरी स्मूथ। बट इन केस ऑफ स्पोरोफाइटिक SI, stigma is papillate and dry. When we are talking about the genotype, we have seen this, the pollen or the gamete is involved in self-incompatibility. But in case of sporophytic, the diploid tissue of style or stigma, and that is the sporophyte that is involved. It means यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर हैप्लॉइड सिंगल सेट इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर डबल सेट इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पर yes, locus products are synthesized after completion of meiosis, or yes, locus products synthesized before completion of meiosis. yes, locus products मतलब जो प्रोटीन इससे बनेगा, locus means the gene, और जीन का प्रोडक्ट क्या होता है? आपने सेंट्रल डोग्मा में देखा है कि जीन एक डीएनए होता है जिससे कोई आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा और उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। मतलब एस लोकस का जो प्रोटीन रहेगा वो मियोसिस से पहले बनता है गैमेटोफाइटिक के अंदर, सॉरी बाद में बनता है गैमेटोफाइटिक के अंदर, और स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर वह मियोसिस के पहले बनना शुरू होता है। ठीक है। ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब अरेस्ट इन द स्टाइल, यह चीज हमने देखी है कि ग्राउंड गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर पोलन ट्यूब यदि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है तभी भी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू होता है, वो कंप्लीट नहीं होता, बीच में उसको रोका जाता है। यहाँ पर आपको
यहाँ पर दिख रही है फर्स्ट फिगर में। पोलर ट्यूब यहाँ तक तो बन चुकी है, पर आगे वो नहीं बनेगी। यहाँ पर भी हमने देखा है कि यहाँ पर इसकी मैचिंग कैसी थी, यस ट्यूब मैच नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पर यस ट्यूब का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुली हुआ, पर यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। और स्पोरोफाइटिक के बारे में हमने स्ट्रिक्टली कहा, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता है। स्पोरोफाइटिक जो है वो कहता है कि यदि इनकॉम्पेटेबिलिटी है तो थोड़ा भी इंटरटेन नहीं करना है, उसको पोलन ट्यूब भी फॉर्म करने से रोका जाना चाहिए, ऐसा इसके अंदर होता है, ठीक है। तो these are some important basic differences in between the gametophytic and sporophytic self incompatibility। यहां पर हम इस लेवल तक रुकते हैं और आगे हम चलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, जहां पर हमें बात करनी है some molecular glimpses on the self incompatibility, also on the signaling as well। ऐसा माना जाता है कि कम से कम दो अलग अलग यस जीन्स जो है या एस लोकस जो है वह इस चीज को अचीव करने के लिए जरूरी होती है, और एक जो होती है उसको कहा जाता है मेल डिटर्मिनेंट, दूसरी जो होती है फीमेल डिटर्मिनेंट। अब तक हमने जो चीज पढ़ी है सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, यह किस तरीके से अचीव होगी, इसमें मेल डिटर्मिनेंट नाम का कोई एक प्रोटीन होगा और फीमेल डिटर्मिनेंट नाम का कोई एक प्रोटीन होगा। आगे चलकर हम बात करेंगे कि कोई एक प्रोटीन जो है वह एक पेरेंट से होगा, दूसरा प्रोटीन दूसरे पेरेंट से होगा, जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों का भले ही पेरेंट एक ही हो सकता है, तभी तो रोका जाता है, ठीक है। This multi-gene complex is inherited together as one unit। मतलब इसके जो जीन्स होंगे वो एक साथ जुड़े होंगे, ग्रुप में होंगे और वो एक साथ ही इनहेरिट किए जाते हैं। वहां पर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर, यहाँ का क्रॉसिंग ओवर हम बात कर रहे हैं वो मियोसिस लेवल का, वो क्रॉसिंग ओवर उसके बीच में नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस तब ज्यादा होते हैं, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस तब ज्यादा होते हैं जबकि दोनों जीन्स के अंदर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। यदि वह जीन्स लिंक्ड है, एक दूसरे के पास में है, तो वो एक साथ इनहेरिट करने का चांस होता है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का चांस कम होता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा है क्रोमोसोम के ऊपर, जो जीन की लोकस है उसके बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा है उतना रिकॉम्बिनेशन का चांस भी ज्यादा होता है, जिसको आप जेनेटिक्स में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के नाम से पढ़े होंगे, ओके। द वेरिएंट्स of these genes are known as S haplotypes। इस वेरिएंट को S haplotype, yes locus या S haplotype के नाम से हम जानते हैं। Their expression is temporary only at the time of anthesis। I think anthesis is clear to everyone। किसी कली से कोई फूल खिल रहा है, कली का खिलना जो होता है उससे फ्लावर का ओपनिंग होता है, उस चीज को हम एंथेसिस कहते हैं बॉटनी के अंदर। Anthesis is the opening of bud, okay, opening of bud and complete opening of the flower, that is this process is called the anthesis। And especially in stigma, this is regulated, it get expressed only at the time of anthesis and stigmatic surface। स्पेशल का मतलब है वो सिर्फ उसी जगह के लिए सीमित रहेगा, वो सिर्फ स्टिग्मा के अंदर ही एक्सप्रेस होगा, बाकी प्लांट्स के पार्ट्स में वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तभी तो हम यह कहते हैं कि हर एक सेल, प्लांट्स के अंदर हो ह्यूमंस के अंदर हो, हर एक सेल अलग अलग है, क्योंकि हर एक सेल के अंदर डीएनए भले ही एक जैसा है पर फिर भी जीन एक्सप्रेशन एक जैसा नहीं होता है, इसलिए अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करने में के लिए तैयार होती है। मतलब आप बात करोगे कि आईज की सेल है, उसके अंदर जीन एक्सप्रेशन अलग रहेगा, हार्ट की सेल है, इसके अंदर जीन एक्सप्रेशन अलग रहेगा, भले ही दोनों के पास 100% डीएनए सेम है, एक जैसा है, पर फिर भी सारा की सारा 100% जीन एक्सप्रेशन एक जैसा नहीं हो सकता है। अगर जीन एक्सप्रेशन एक जैसा होगा तो वो सारी की सारी सेल एक टाइप की होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें अलग अलग मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। यह मैकेनिज्म तो हम अभी देख रहे हैं, आप यह जो सिग्नलिंग देख रहे हैं, दिस इज इन फैमिली ब्रासिकेशी, इन ब्रासिका फैमिली, गोभी के प्लांट में आपको ऐसा कोई सिग्नलिंग दिखता है। हमने बात की है कि इसमें दो अलग अलग फैक्टर का होना बहुत जरूरी है, एक फैक्टर होता है मेल फैक्टर और दूसरा फैक्टर होता है फीमेल फैक्टर, ओके। तो यहाँ पर जो
डिटर्मिनेंट है मेल डिटर्मिनेंट, उसका नाम है sp11 या SCR, और यहाँ पर फीमेल जो डिटर्मिनेंट है वह एक SRK। SRK को आप जानते हैं, यह SRK बॉलीवुड के SRK से अलग है, यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला SRK है। SRK बॉलीवुड वाला शाहरुख खान होता है, यहाँ पर SRK शाहरुख खान नहीं है, यहाँ पर SRK जो है वह SR मींस सेरीन आर्जिनिन काइनेज। यहाँ पर यह कोई एंजाइम रहेगा जो कि किसी प्रोटीन के ऊपर उसके सेरीन और आर्जिनिन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा। काइनेजेस आर द ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स which are performing the phosphorylation. SR protein, SRK is the SR kinase. SR kinase means serine arginine kinase here. इसके अंदर होता क्या है, यह क्या काम करता है? मेन फैक्टर है sp11, मतलब यह sp11 जो है, यह जो दिख रहा है, दिस इज sp11, दिस इज फ्रॉम द पोलर, दिस इज फ्रॉम द पोलर। यह क्या करता है? दिस इज इंटरैक्टिंग विद दिस, यहाँ पर इन this self incompatibility in Brassicaceae family, sp11 from the pollen or from the male side will bind to the SRK, इस SRK के साथ वह bind हो जाएगा and leads to autophosphorylation resulting in prevention of polar tube growth। यहाँ पर इसके ऊपर यह sp11 वाला मेल फैक्टर जो है, मेल डिटरमिनेंट जो है, इसके ऊपर जब ऐड हो जाएगा तो SRK जो है, SRK क्या काम करता है? SRK का काम है काइनेज एंजाइम है, तो सारे के सारे काइनेज एंजाइम क्या काम करते हैं? काइनेज एंजाइम्स आर परफॉर्मिंग फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन करेगा वो सेरीन आर्जिनिन के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होगा? तो ऐसा फॉस्फोराइलेशन होने के बाद उसके ऊपर पोलर ट्यूब की जो ग्रोथ है उसको रोका जाएगा। ये फॉस्फोराइलेशन इस प्रोटीन के ऊपर जो हो चुका है, इसकी वजह से आगे वाली जो प्रोसेस थी पोलर ट्यूब फॉर्मेशन के बाद पोलर ट्यूब ग्रोथ वह रुक जाएगा। ये ग्रोथ क्यों रुक रही है? इसकी मॉलिक्यूलर स्टडी हमने की तो हमें पता चला कि पोलन से कोई एक प्रोटीन आता है जिसको sp11 कहा जाता है, वह फीमेल की स्टाइल के ऊपर जो प्रोटीन है वह एक एंजाइम है SRK, उसके ऊपर जब बाइंड हो जाता है तो वो बाइंड होने के बाद वो SRK जो है वो किसी और नेक्स्ट प्रोटीन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन करता है, और उस फॉस्फोराइलेशन की वजह से नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो प्रोसेस रोका जाता है। दिस इज द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को मॉलिक्यूलर लेवल पर ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर इस तरीके से जाना गया। ओके, सो हियर दिस इज द मॉडल which is saying that this is the signaling or molecular cascade of signaling. Interruption. Now again. Yes, sir. Voice is clear. Yeah, voice breaking is there, sir. Voice breaking. Yeah. I think you have to refresh the all connectivities. Just wait, sir. I am refreshing. Okay. Yes, sir. Now voice is clear. Okay, sir. Okay, now fine. So I think you have to start from last slide, sir. This is second last slide, sir. Yeah. No, last slide. Last slide. Last means. Last slide. Okay, okay. Yeah. Okay. Last one. Okay. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Last discussion which was halted. Yeah. That slide. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, this तो slide. ठीक है, ये चीज मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरीके से अचीव की जा रही है, मॉलिक्यूल के अंदर कैसे किस तरीके से सिग्नलिंग हो रही है, यह चीज जानने के लिए हमने बात की है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के दोनों के अंदर कम्युनिकेशन होना जरूरी है, दोनों के अंदर बातचीत होना जरूरी है। तो बातचीत हो रही है यहाँ पर sp11 नाम का जो प्रोटीन बन रहा है वह प्रोटीन बना रहा है पोलन। पोलन इज द मेल। ओके, एंड उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए दूसरा डिटर्मिनेंट जिसको हम फीमेल डिटर्मिनेंट कह रहे हैं वो है sp11, सॉरी SRK।
SRK is producing from the female and SP11 is producing from the male. जब SP11 की इंटरेक्शन SRK के साथ होती है, वह जब इसके साथ इंटरेक्ट करता है, तब SRK कोई एक काइनेज है. काइनेज, SRK is not the शाहरुख खान. SRK is the SR kinase. SR kinase is the protein which are performing the phosphorylation role, and phosphorylation is the process of addition of the phosphorus on the protein or the phosphate group on the protein. Phosphate group is adding on the next protein in signaling. So यह प्रोटीन के ऊपर कोई फॉस्फेट ऐड किया है, यह फॉस्फेट किसने ऐड किया है? तो यह फॉस्फेट SRK ने ऐड किया है. यह SRK यह फॉस्फेट कब ऐड करेगा? तो वो तभी ऐड कर सकता है जब इसके साथ इंटरेक्शन किसका होना जरूरी है? SP11 का. जब SP11 का इंटरेक्शन SRK के साथ होगा, तभी वो यह नेक्स्ट प्रोटीन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन कर सकता है. जब तक SP11 का इंटरेक्शन इस SRK के साथ नहीं होता है, तब तक वह यह फॉस्फोराइलेशन नहीं करता है. और यह फॉस्फोराइलेशन जब हो जाता है, तो यह उस कैस्केड को एक्टिवेट कर देता है. उस अलग अलग, यह बहुत कॉम्प्लेक्स कैस्केड होता है जिसका स्टडी आज तक नहीं हुआ है, जो कि सिर्फ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को रोक देता है. तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को रोका जाने वाला जो प्रोसेस है, वो यहां से मेल साइड से कौन सा प्रोटीन आता है? तो वो प्रोटीन आज हमें पता है, उसका नाम हमने दिया है इस प्रोटीन को SP11 प्रोटीन. और फीमेल पार्ट्स का जो मेम्ब्रेन बाउंड यहां पर आपको SRK दिख रहा है, दिस इज द काइनेज. दिस इज द काइनेज, SR काइनेज. S फॉर सेरीन, R फॉर अर्जिनिन. आपको पता होंगे अमीनो एसिड्स के जो सिंबल्स है, वो S मींस सेरीन, R मींस अर्जिनिन. तो यह इंटरेक्शन के बाद यह जो सारी प्रोसेस है, इस प्रकार से ये पोलन ट्यूब को रिजेक्ट किया जाता है. इसलिए वहां पर पोलन ट्यूब को इलोंगेट नहीं किया जाता है. जब पोलन ट्यूब इलोंगेट नहीं होगा, तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे. फीमेल गैमेट्स तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. तो इस प्रकार से यहां पर यह बाधा डाली जाती है, जिसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कह रहे हैं. जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का टारगेट क्या है? टू अवॉइड द सेल्फ फर्टिलाइजेशन. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मेन टारगेट है कि अपने खुद के ही मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन अपने खुद के ही फीमेल गैमेट से होने से वो रोकता है. तो ये चीज आपको दिखती है ब्रासिकेसी फैमिली में दिखती है. आगे की जो दो अलग अलग सिग्नलिंग है, मतलब जिस प्लांट्स में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, सारे के सारे प्लांट्स में सिग्नलिंग एक जैसा नहीं है, अलग अलग तरीके के सिग्नलिंग्स है. ये ब्रासिकेसी फैमिली के जो प्लांट्स है, जिसके अंदर मतलब रेडिश वगैरह जो प्लांट्स है, जिसके अंदर आपको इस तरीके का सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिखता है मॉलिक्यूलर लेवल पर. जब हम सोलेनेसी फैमिली की बात करते हैं, तो इसके अंदर कुछ आरएनएज प्रोटीन बनता है, जो कि डिग्रेडेशन कर आगे वाले प्रोटीन्स को नहीं बनने देता, और आगे वाले प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो ट्यूब फॉर्मेशन और ट्यूब इलांगेशन जो है वो नहीं हो पाएगा. तो इसके अंदर दो मेल फैक्टर जो है, मेल डिटर्मिनेंट जिसका नाम है SLF और SFP, और फीमेल फैक्टर जो है वो है SRNS. RNS है मतलब वो आरएनए को ब्रेकिंग करेगा, आरएनए को चॉपिंग करेगा. आरएनए को चॉपिंग किया जाएगा तो उससे कोई सक्सेसफुल प्रोटीन नहीं बनेगा. प्रोटीन नहीं बनेगा तो अगला कास्केड नहीं होगा. तो यहाँ पर क्या होता है वो शॉर्टली हम देख लेते हैं कि यहाँ पर SLF और SBP जो मेल डिटर्मिनेंट है, वह SRNS के साथ, SRNS जो कि फीमेल डिटर्मिनेंट है, उसके साथ इंटरैक्ट करेगा. और ड्यूरिंग दिस स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, pollen falls on stigma as RNase is produced and enter into the stigmatic surface. Yes, RNase तभी जाएगा स्टिग्मेटिक सरफेस के ऊपर, क्योंकि वो स्टिग्मा का है, स्पोरोफाइटिक है. और यहां पर होगा क्या कि वो RNase क्या करेगा? आरएनए को डिग्रेड करेगा. कौन से आरएनए को डिग्रेड करेगा? जो इनकोडिंग कर रहा था पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की. पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन्स लगेंगे, वो प्रोटीन्स कैसे बनेंगे? उसका कोई जीन है, उस जीन से कोई आरएनए बन रहा था, आरएनए से आगे प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन से. तो आरएनए तो बनता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो हो जाता है यहाँ पर यहाँ पर जो रेगुलेशन हो रहा है वह पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल है. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल क्यों है? क्योंकि आरएनए बने जा रहा है और आरएनए को तोड़ा जा रहा है. यहाँ पर पहले आरएनए बन रहा है. तो इन सोलेनेसी फैमिली द रेगुलेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इट इज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल होते जा रहा है. फीमेल स्टिग्मा के पास कोई एक ऐसा प्रोटीन है जिसको हम SRNase कह रहे हैं. वह क्या करेगा? तो वह जो प्रोटीन को तोड़ेगा, वो प्रोटीन ट्यूब फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था.
यदि वो सॉरी आरएनए को तोड़ेगा, वो आरएनए को चॉप करेगा तो उससे बनने वाले कोई आगे वाले प्रोटीन नहीं बनेंगे, आगे वाले प्रोटीन नहीं बनेंगे तो उससे कोई ट्यूब भी नहीं बनेगा। ट्यूब फॉर्मेशन के लिए इस आरएनए का टूटना गलत है। आरएनए का टूटना गलत इसलिए है कि आरएनए टूटेगा तो उससे कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, उसके अंदर जो इनकोड है, प्रोटीन का इनकोड है, तो वो रीड नहीं करेगा, उसके ऊपर राइबोसोम तभी आकर प्रोटीन बनाएगा जब वो इंटैक्ट आरएनए है। पर आरएनए को इंटैक्ट नहीं रखा, किसने नहीं रखा? वो स्टिग्मा का एक प्रोटीन है जिसका नाम है एसआरएनएस। तो यह थिंग आपको सोलेनेसी फैमिली के अंदर दिखती है। एंड दिस इज द पापावरिसी फैमिली के अंदर कुछ अलग चीज इन दोनों में से है। मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इन दिस, यहां पर मेल डिटर्मिनेंट हमें आज तक पता नहीं चला है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसके ऊपर। आज तक हमें मेल डिटर्मिनेंट कौन सा प्रोटीन है वो हम आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं, इसलिए यहाँ पर रिसर्च स्कोप है, वो फ्यूचर में हमें मिल जाएगा। पर यहाँ पर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होती है, ये बात हमें आज तक पता चली है। फीमेल फैक्टर जो है उसको हम यस प्रोटीन नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर नहीं है, पर फिर भी हम कहते हैं कि फीमेल डिटर्मिनेंट जो है वो आइडेंटिफाइड है, मेल डिटर्मिनेंट आइडेंटिफाइड नहीं है। यस प्रोटीन जो है यहाँ पर जो फीमेल वाला प्रोटीन है, इट बाइंड्स टू द एसबीपी। एसबीपी इज द यस बाइंडिंग प्रोटीन एंड इट गिव्स द इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो उससे वेरियस अलग अलग रिएक्शन को वो एक्टिवेट कर देगा। उसमें से एक होता है एक्टिन डिपोलिमराइजेशन। एक्टिन डिपोलिमराइजेशन किस चीज, एक्टिन पॉलीमराइजेशन किस चीज के लिए जरूरी है? आप पढ़ चुके हैं फ्लैजेला के मूवमेंट में, वैसे ही एक्टिन पॉलीमराइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्यूब्स ऑफ द पोलन, दैट इज पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की ग्रोथ होने के लिए एक्टिन पॉलीमराइजेशन बहुत जरूरी होता है, और पापावरेसी में एक्टिन पॉलीमराइजेशन को रोका जाता है, मतलब डीपॉलीमराइजेशन किया जाता है उसको, और इस तरीके से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होने से रोका जाता है। मतलब यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई पोलन एक आइडेंटिफाई हो गया है तो उसकी वजह से यहाँ पर एस प्रोटीन जो है कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इस सेल के अंदर बढ़ाएगा। कैल्शियम अगर बढ़ता है तो वो कोई ऐसे प्रोटीन्स को लीड करेगा कि जो प्रोटीन्स ये एक्टिन डिपॉलीमराइजेशन करेंगे, और एक्टिन डिपॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होती है तो हमें बार बार वही चीज कह रहे हैं कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ जब नहीं होती है तब उसके ऊपर जो मेल गैमेट्स है वह मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंच पाते। फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंच पाते तो फर्टिलाइजेशन की बात नहीं सक्सेस होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इस तरीके से सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी से सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बीच में बाधा डाली गई है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो एंड फाइनली these all things we have covered, and now this topic is completed successfully from my side. If you have any doubts then you may ask to me. Thank you very much, sir. अगर आप डाउट है तो आप remove slides, sir, and then we will go for a discussion. It means stop the yeah you remove screen sharing, yeah, sir? yes Yes sir. So now topic is open for discussion. If students have any query they can ask. If anybody having doubt, you can ask any questions if you have any doubts. And if you are unable to talk, then you can just message on chat box. Our HOD sir, Dr. J. Kiran Chedkar sir also joined now. So many comments are there. Your way of teaching is very good. So students are very satisfied about your lecture, sir. Good comments are there. yes, within this to have that much able to hear you in this concept. If you may have a doubt,
sir, if you have my email address, then you can just Yeah, give it the student. Okay, sir. Okay. So in this concept, when you will be going to read this concept, you may problems during reading or some doubts may arise after this lecture. You may ask to me later on also. Okay, sir. Still, voice breaking is there from your side, but lecture is very good. Yes, sir. Now, Yeah. yes, Yeah. yes. When I'm Still voice breaking. connecting I this think you headphones, have to off then your. it will be that getting my voice. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Oral aspects regarding this topic as per monitor level is very good. So students are, I think, very satisfied about all concept regarding this topic because there are good comments on chat box that given by students. Yes, sir. Thank you, and wish you all the best for your preparation of the next exams to all students, and also thanks to university faculty members to giving me this opportunity to interacting with the students. Now I So thank you, yes, sir. welcome. Thank Sir. you, TK sir, Amande sir, Nathar ma'am, and Mubin. Thank you. So now I, on the behalf of Department Botany and Organizing Committee, thank you very much, sir, for your very valuable lecture, and you covered all aspects. You explained very beautifully with very good examples. Now I call. He delivered incredibly very lucid manner, and the topic was very interesting for the first year students. That is one paper, plant development and reproduction. That unit has been covered, and as far as the reproductive biology students special concerned, they have covered this topic. I personally couldn't meet Professor Ananta Mure, but looking into his presentation and preparation, I think that he is well prepared, and in future also the students will be benefited by his experience and knowledge. So, sir, I give you good luck for the future, and be with us, be with the department. We always try to deliver good things, best things to the students. And when students are satisfied after the lecture of the teacher, that is the reward for the teacher. So, on behalf of the department, I extend my sincere thanks to Professor Ananta More. I think all More are very good in delivering lectures. Our More is also good. So, the More surname is a very historic one, and they always prepare the history. So, More sir, Professor Ananta More, I congratulate you. Very nice presentation. I also acknowledge the presence of all the students who are benefited by this lecture. Hope in future also you will cooperate with the department, and whatever we are trying to deliver, that will be pursued by your mind, and you will absorb it, and for the future life you will use it as a knowledge, as a information, whatever may be, to build up your personality. And for the students, let us see the presentation delivered by Anant More. He lucidly delivered, and his language was so simple, but the language hardly makes difference when it is informative, when it is in depth, and when the teacher is well prepared. So I congratulate and extend my sincere thanks to Professor Ananta More, and also thanks to Kamlakar More to organize this nice what we can say, the lecture series for the students. Thank you, one and all. Thank you, sir, for your good comments. We thought that we have to Thank you organize. very much, sir. Thank you very much, sir. TK sir, thank you very much. We didn't meet earlier, but in future I will be there in Buldana. Yes, sir. Yes, sir. Sure.
So concept of organizing lecture series is Dr. J. Tedke sir. He always motivate us, always guide us, and give free all things, all support. And because of that, this is possible to organize this lecture series. So I, on the behalf of myself and all students, thank you very much, sir, for your valuable support. Now I request, and also I am very much thankful on the behalf of organizing committee and Department of Botany for Professor Anant More. He delivered very good lecture, and in future also we will plan about his lectures. Now I request Swapnil Telange for a word of thanks. Thank you, sir, for your valuable guidance. I extend a heartful thanks to Professor Ananta More, sir, for delivering such a nice lecture. I also very much thankful to organizing committee for arranging this session. Also, I extend my sincere thanks to all the participants who being present here and all other fraternity. Now, with the permission of organizing committee, I declare that today's webinar session is over. Thank you. Thank you. Thank you very much all. Thank you, sir. Thank you, sir.